ठीक है, started. Let's go here. अब देखो कंट्रोलिंग में I'll not spend much time on theory. सबको पता है what is the purpose of controlling, right? Controlling objective is to control the cost, right? We are talking about cost control, not the revenue. And cost control can be done only when you measure it. बिना measure किए आप then you apply all the controlling things. Now, in order to measure the cost, how much is my cost at any given point of time, I should be able to get a report about my cost, right? So what we'll do is we will create bucket. I call it bucket. Sorry. Now let's say this is my bucket. Okay. Idea is whenever I incur any cost, right? Whenever I incur any cost, I will keep storing that cost here. Okay. I will keep pouring the cost in this bucket. That is the idea. जब भी मेरा cost आएगा, I will move this cost and store it here. ठीक है? Store it here. Similarly, जब भी cost आएगा, again you incurred some cost, again you incurred some cost. ठीक है? I keep on adding here in this bucket. So later on, if I want to see how much is my cost, one approach is to go from this side. And how is this cost coming? From accounting documents, right? It may be a finance document, it may be a controlling document, basically from accounting documents. So either you go from the accounting document side or you simply run the report for your bucket, my cost object. So this bucket will be called as cost object. What it is storing is cost, right? This bucket is storing cost. So I will call it cost object. Cost object is an umbrella term, right? It's an umbrella terminology, big terminology. It's a very generic terminology, just indicating that I have some object which is storing the cost. So I'm calling it a cost object. So in SAP, we have different kinds of cost object, like cost center is one of the cost object. Internal order is another cost object. Then I have WBS I capital. Then I have WBS work breakdown structure as cost object. I have different production orders. Production order can also be a cost object. And similarly, you have product cost collector, also a cost object, right? And at times your, okay, now out of these cost object, right, you must have worked on all of these. In fact, if you're dealing with production side, PP side, right, then production orders are created. So that is a cost object which is collecting the cost for that production, right? It is collecting the cost for that production. So there must be some difference. कुछ तो अंतर होगा, इतने सारे ऑब्जेक्ट क्यों है? अदरवाइज एक सिंगल ऑब्जेक्ट से हमारा काम क्यों नहीं चल रहा, राइट? कुछ तो डिफरेंस होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल कि ऑब्जेक्ट बनाने का पर्पस क्या है? सो दैट यू कैन कलेक्ट द कॉस्ट एंड यू कैन रन द रिपोर्ट्स. बट बाय जस्ट रनिंग द रिपोर्ट यू विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल कॉस्ट. सिर्फ रिपोर्ट रन करके देख लो आपका कॉस्ट कितना है, उससे आपकी बात तो बनेगी नहीं. आप तो इनकर किए जा रहे हो, विच मीन्स देयर हैज टू बी समथिंग विच शुड स्टॉप मी, राइट? कुछ लिमिट लगानी पड़ेगी. दैट लिमिट इज कॉल्ड बजट. आप यहाँ पे कुछ लिमिट लगा दोगे, राइट? सम लिमिट, अपर कैप, या फिर इसको बोलेंगे बजट. ठीक है. देयर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड प्लान कॉस्ट एंड बजट कॉस्ट, राइट? दोनों में स्लाइड सा डिफरेंस है, बहुत स्लाइड सा डिफरेंस है. प्लान कॉस्ट क्या होता है? यू आर प्लानिंग, राइट, कि हमारा कॉस्ट इतना तक आएगा. आई एम जस्ट प्लानिंग. जैसे मेरा इंस्टीट्यूट है, इफ आई हैव टू फोरकास्ट कि मेरा अगले एक महीने में कितना खर्चा आएगा या फिर अगले एक साल में कितना खर्चा आएगा, दैट इज माई प्लान, राइट? कितना खर्चा आएगा. अब मैंने एस्टिमेट किया, राहुल ने एस्टिमेट किया, राजेश ने एस्टिमेट किया, सबने अपना अपना एस्टिमेशन किया है, तो ऑब्वियसली हमारे बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, राइट? तो हमारी प्लानिंग में अलग अलग अमाउंट हो सकता है. मैंने प्लान किया है चलो हमारा 10 लाख खर्चा होगा, राहुल ने बोला नहीं हमारा 12 लाख होगा, राजेश ने बोला नहीं हमारा 8 ही लाख होगा, राइट? तो हमने अपने अपने हिसाब से हमने प्लान किया है. लेकिन बजट क्या होता है? अल्टीमेटली जितना अप्रूव हुआ, राइट, फाइनल अप्रूवल कितने का हुआ है, कितना कॉस्ट आपको एलोकेट किया गया है, दैट इज द बजट ना. सो प्लान कॉस्ट विच इज अप्रूव्ड इज योर बजट. तो मुझे कंट्रोलिंग पर्सपेक्टिव से क्या चाहिए? मैं चीज़ों को कंट्रोल कर सकूं. कॉस्ट स्टोर करना एक ऑब्जेक्टिव है, दूसरा ऑब्जेक्टिव है चीज़ों पे
लिमिट लगाना, मतलब चीज़ों को प्लान करना और साथ ही साथ बजट लगाना। तो कॉस्ट सेंटर में होता क्या है कि कॉस्ट सेंटर में आपके पास प्लानिंग है। कॉस्ट सेंटर में कॉस्ट को प्लान कर सकते हो, ठीक है ना। कॉस्ट सेंटर में कॉस्ट प्लान कर सकते हो। हाँ ना, लेटेस्ट में आ गया है वो फीचर शायद, पर इसी सी में नहीं था ये। कॉस्ट सेंटर में यू कैन ओनली प्लान द कॉस्ट, बजटिंग वाज नॉट देयर, बजटिंग वाज मिसिंग। प्लान कॉस्ट का मतलब क्या है कि आप कॉस्ट को प्लान कर लोगे, बट आप जब इनकर करोगे, राइट, लेट्स से मैंने प्लान किया, मेरा कॉस्ट 10 lakhs, ये मेरा प्लानिंग हो गया, ठीक है। और जब मैं इनकर करूंगा मैं जोड़ता जाऊंगा, किसी भी गिवन टाइम पे मैं कंपेयर कर सकता हूँ कि मेरा एक्चुअल कॉस्ट और मेरा प्लान कॉस्ट के बीच का मैं रिपोर्ट रन कर सकता हूँ कि मेरा प्लान था 10 lakhs और मेरा एक्चुअल आ गया 9 lakhs, राइट। किसी भी टाइम पे मैं रिपोर्ट रन के कंपेयर कर सकता हूँ बिटवीन प्लान एंड एक्चुअल। लेकिन यहाँ पे सिस्टम मुझे रोकेगा नहीं। आई कैन गो ऑन बुकिंग कॉस्ट मोर देन माई प्लान, राइट। आई कैन गो ऑन बुकिंग कॉस्ट मोर देन माई प्लान। 10 लाख का प्लान था, मैंने 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख खर्चा कर दिया, राइट। क्योंकि सिस्टम में वो कॉस्ट सेंटर के अंदर वो फीचर नहीं है कि वो आपको स्टॉप करे। बजटिंग फीचर नहीं होता, वो आपको स्टॉप नहीं करेगा। आप रिपोर्ट रन कर दो, आपको प्लान वर्सेस एक्चुअल दिखा देगा कि इतना आप एक्सीड कर चुके हो, राइट, इतना आपका वेरिएंस है, लेकिन आपको स्टॉप नहीं करेगा। दैट इज अ डिसएडवांटेज ऑफ कॉस्ट सेंटर, स्टॉप नहीं करता, राइट। इंटर ऑर्डर में क्या होता है, यहाँ पे बजटिंग फीचर है, कॉस्ट को बजट कर सकते हो, ठीक है ना। कॉस्ट बजट, बजट का मतलब है कि आपने लिमिट लगा दी है 10 lakhs की। अब क्या होगा जब आप एक्चुअल्स बुक करोगे, तो किसी भी गिवन टाइम पे कंपेयर तो कर ही सकते हो एक्चुअल कॉस्ट वर्सेस बजट कॉस्ट। साथ ही साथ सिस्टम आपको स्टॉप करना चाहिए, राइट। अगर आप ये लिमिट तक पहुंच गए हो तो आप सिस्टम को सेट कर सकते हो कि मुझे क्या चाहिए। या तो मुझे इस लिमिट के ऊपर जाने ही ना दे, पूरा रोक दे एकदम से, या तो आप बोलोगे नहीं ठीक है यार, थोड़ा बहुत एक्सीड हो रहा है, बिजनेस मस्ट कंटिन्यू, राइट, बिजनेस चलना चाहिए, बिजनेस रुकना नहीं चाहिए। अगर प्रोडक्शन हो रही है, किसी चीज़ की जरूरत पड़ी है, खरीदना है, तो जस्ट बिकॉज मेरा बजट खत्म हो गया मैं प्रोडक्शन रोक नहीं दूंगा, मैं बजट को एक्सीड कर जाऊंगा एंड लेट द प्रोडक्शन हैपन, राइट। तो आप उससे एक्सीड कर रहे हो, लेकिन वहां पे भी आप एक लिमिट लगा के रखोगे कि मेरा जो ओरिजिनल बजट है उससे कितना एक्सीड अलाउड है, राइट। तो आप सेट कर दोगे कि जब बजट तक पहुंचे, लेट्स से जब यहाँ पहुंच रहा है 90%, 90% ऑफ द बजट इज ओवर, सिस्टम आपको इन्फॉर्मेशन मैसेज देना स्टार्ट कर दे कि यू आर नियरिंग योर बजट। जब आप 100% क्रॉस कर जाओ लेकिन अभी भी 110% के अंदर हो, तो आप बोलोगे हाँ ठीक है, सिस्टम मुझे 100 से ऊपर 110 के नीचे तक वार्निंग मैसेज दे दैट यू आर एक्सीडिंग योर बजट, राइट, यू हैव एक्सीडेड योर बजट। फिर आप सेट कर दोगे नहीं यार मुझे 120% तक जाना है, 120 के ऊपर आपको रोक दे, राइट। तो आप 120 तक वार्निंग लोगे और 120% के ऊपर आपको हार्ड स्टॉप आ जाए, मतलब एरर आ जाए। तो इसका मतलब बजट में वो फंक्शनैलिटी है कि आप वहाँ पे सिस्टम का बिहेवियर डिसाइड कर सकते हो कि आपको इन्फॉर्मेशन कब तक चाहिए, वार्निंग कब तक चाहिए, और अल्टीमेटली हार्ड स्टॉप कहाँ पे चाहिए। नॉर्मली एवरी बिजनेस गोज फॉर 20% के आसपास, 10-20% ओवर एंड अबव देयर बजट उतना अलाउ करते हैं, उसके बाद फिर स्टॉप कर देते हैं, राइट। तो बजट वो चीज़ है कि जहाँ पे आपको सिस्टम स्टॉप कर सकता है कि आप फर्दर ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। दैट फीचर इज अवेलेबल इन इंटरनल ऑर्डर, राइट। और प्रैक्टिकली क्या होगा, बजट खत्म हो गया तो बजट को आप टॉपअप भी कर सकते हो, राइट। बजट में एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड कर सकते हो, मुझे बजट इंक्रीज करना है, मार्केट से मतलब मेरी सिचुएशन बदल गई है, मेरे को ज़्यादा बजट एलोकेट हो गया है, आई नीड टू टॉप अप माई बजट, तो वो सिस्टम में फीचर है एसीपी में कि आप बजट को ऐड कर सको। या फिर मैंने कम खर्च किए हैं, राइट, मेरा कुछ तो अमाउंट बच गया बजट का, तो ये फीचर है कि आप उसको अगले साल कैरी कर लो या फिर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में डाल दो, राइट। मेरा काम कम में हो गया है, मेरा पैसा बचा हुआ है, तो किसी दूसरे में ट्रांसफर कर सकता हूँ मैं बजट को। बजट ट्रांसफर भी होता है, बजट टॉपअप भी होता है, राइट। राकेश, आई हैव वन पॉइंट। यस। लेट सपोज मैंने इंटरनल ऑर्डर पे बजट फंक्शनलिटी लगा दी, ठीक है ना। देन प्लानिंग भी तो हम इंटरनल ऑर्डर के बेस पे ही करेंगे ना, कि कॉस्ट सेंटर पे करेंगे। आएंगे उस पर, हम प्लानिंग कॉस्ट सेंटर पे करते हैं। आईओ का पर्पस थोड़ा सा डिफरेंट है ना। कॉस्ट सेंटर इज एट अ वेरी मैक्रो लेवल, बहुत बड़े लेवल पे। आईओ इज हम्म। एट अ माइक्रो लेवल, जहाँ पे एक छोटे से पर्पस के लिए आपने किया है। आईओ
आप यूज कर रहे हो, लेकिन मे बी आपका पर्पस खत्म हो जाएगा तो आईओ क्लोज कर दोगे आप। कॉस्ट सेंटर में कुछ क्लोजर टाइप नहीं होता, वो ईयर ऑन ईयर चलता रहेगा। मैं आऊंगा उस पर कि प्लानिंग ठीक है। कहाँ करते हैं, बजट कहाँ करते हैं, राइट। तो आईओ में वो फीचर है कि आप उसको कॉस्ट को बजट कर सक रहे हो, बजट को इंक्रीज कर सकते हो, बजट को डिक्रीज कर सकते हो, बजट को ट्रांसफर कर सकते हो, राइट, वो सब कुछ है। WBS इज वेरी सिमिलर टू आईओ, वेरी वेरी सिमिलर टू आईओ। ओनली थिंग इज, तो यहाँ पे सिमिलर बोला तो यहाँ पे भी कॉस्ट बजट होगा, राइट। एक एडिशनल फीचर है कि यहाँ पे हायरार्की भी होता है, ठीक है ना, हायरार्की, जो कि इंटरऑर्डर में हायरार्की नहीं होता। हायरार्की का क्या फंडा है बाद में बताएंगे। कॉस्ट सेंटर में भी हायरार्की है, थोड़ा आइडिया आप लोगों को ऑलरेडी होगा पहले से भी। तो हायरार्की यहाँ पे होता है कॉस्ट सेंटर में और WBS में, राइट। तो हायरार्की का मतलब ये है कि अगर आप कोई बहुत मैसिव प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे हो, मतलब मान लो आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट को डील कर रहे हो जहाँ पे ड्यूरेशन बहुत लंबा है, टू मेनी पीपल आर इन्वॉल्व, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, कॉस्ट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, राइट। उसको आपको मैनेज करना है। इसका मतलब है कि आपको एक एक चीज़ का ट्रैक रखना है, किस चीज़ पे कितना खर्चा हो रहा है और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है, समझ रहे हो। अगर एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, लेट्स से मुझे सिर्फ एसी बिठाना है और सिर्फ इतना ही काम है मेरा, एसी बिठाना है, छोटा सा काम है। जो भी खर्चा आएगा मैं एक इंटर ऑर्डर यूज़ करूंगा और उसमें स्टोर कर लूंगा, मेरा काम बन जाएगा। लेकिन अगर मुझे शादी करवानी है किसी की, राइट, तो शादी में तो 50 खर्चे होते हैं और वो एक दिन का प्लानिंग नहीं है, शादी को 2-3 महीने की प्लानिंग होती है। और साथ ही साथ उसमें अलग अलग लोगों को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, राइट। और आपको हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को बराबर टैग करना है कि कौन कितना कहाँ खर्च कर रहा है और कहाँ आप एक्सीड कर जा रहे हो, कहाँ आप विद इन लिमिट हो। तो वहाँ पे क्या होगा कि डिफरेंट डिफरेंट पीपल इन्वॉल्व है, राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी बटी हुई है लोगों के ऊपर, साथ ही साथ अमाउंट ज़्यादा इन्वॉल्व है, साथ ही साथ ज़्यादा डिटेल्ड प्लानिंग इन्वॉल्व है। तो वहाँ पे आपको ये चाहिए होता है WBS हायरार्की। जैसे रेल का मेट्रो बन रहा है, राइट, तो मेट्रो रेल अगर बन रहा है तो वो 10 साल का काम है, वो पुणे मेट्रो बन रहा है 10 साल का काम है वो, तो एक दिन का काम नहीं है वो। साथ ही साथ वहाँ पे 20-30 हज़ार करोड़ रुपए लग रहे होंगे, वहाँ पे इतने सारे लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, सब अपने अपने एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। तो 10 ईयर्स की प्लानिंग, उसके बाद फिर टू मेनी पीपल इन्वॉल्व, बहुत मैसिव प्रोजेक्ट है, अमाउंट्स बहुत ह्यूज है, मॉनिटर करना पड़ेगा आपको, डिटेल्ड लेवल एनालिसिस चाहिए आपको, कहाँ कितना खर्च हो रहा है, राइट, क्योंकि हर एक एक्टिविटी आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। जब मेरा फर्स्ट वाला अचीवमेंट माइलस्टोन कंप्लीट होगा तो मेरा सेकंड एक्टिविटी स्टार्ट होगा। फर्स्ट में आप ओवर रन कर गए, ज़्यादा खर्च कर दिए, तो ऑब्वियसली सेकंड वाला आपका डिले होगा, वो भी ओवर रन होगा। तो वहाँ पे आपको चीज़ों को बहुत अच्छा कंट्रोल चाहिए होता है, राइट। तो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व है, राइट, ह्यूज अमाउंट्स इन्वॉल्व है, मैसिव अमाउंट इन्वॉल्व है, नंबर ऑफ पीपल, रिस्पॉन्सिबल पीपल ज़्यादा है, वहाँ पे आप WBS यूज़ करते हो। और अभी के लेटेस्ट सिनेरियो में ऐसा हो रखा है कि कंपनीज आर रेयरली यूजिंग इंटरनल ऑर्डर, इंटरनल ऑर्डर बहुत कम हो गया यूज़। जो नए सेटअप हो रहे हैं ना, जो नए SAP इंस्टॉल इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आईओ को यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, दे आर गोइंग फॉर राकेश सर, WBS। यस। सर ये जैसे कॉस्ट सेंटर ग्रुप रहता है उसमें हायरार्की मेंटेन करते हैं, तो वो मेंटेन किस बेसिस पे होती है हायरार्की? आएंगे उस पे, जब हम कॉस्ट सेंटर पे डिटेल्स पे आएंगे तब आएंगे उस पे कि हायरार्की कैसे बनती है, राइट। ओके सर। हायरार्की इज नथिंग बट योर एक्चुअल बिजनेस सिनेरियो। आपका जो बिजनेस, आपका बिजनेस में जो कॉस्ट इनकर हो रहा है, राइट, जो भी कॉस्ट इनकर हो रहा है वो आप रिपोर्टिंग कैसा चाहते हो, दैट इज योर हायरार्की, कि आपको रिपोर्टिंग कैसा चाहिए। मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा जब उस पे आऊंगा, जब हम लोग हायरार्की बनाएंगे तो अपन तो डिस्कस सर करेंगे कि इसकी कोई एक रिपोर्ट होती है, जैसे KSB1 कॉस्ट सेंटर्स की रिपोर्ट होती है, उसी टाइप का कोई एक रिपोर्ट है होता है जिसमें हम हाँ हाँ, हायरार्की KS B1 से ही चेक देख कर सकते हो, नहीं, KS B1 में ही वो ऑप्शन है। हायरार्की भी चेक कर केओ बी सकते हो? वन ऑर्डर लेवल पे शायद KO B1 है। KO बोलते हो तो वो इंटर ऑर्डर चला जाता है, KS बोलते हो तो कॉस्ट सेंटर पे रहते हो आप। तो KS B1 कॉस्ट सेंटर की लाइन आइटम रिपोर्ट है, जहाँ पे इंडिविजुअल कॉस्ट सेंटर के लिए भी रन कर सकते हो, ग्रुप के लिए भी रन कर सकते हो, हाँ ठीक है। हाँ सर, अभी हम उन हाँ। चीज़ों पे, हाँ अभी हम उन चीज़ों पे नहीं आते, अभी हम बेसिक पे रहते हैं एकदम ना। जैसे ओके। जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीज़ें अपने आप ही आएंगी सामने। ओके सर। तो आइडिया ये है कि हमारा ये अलग अलग इतने सारे ऑब्जेक्ट क्यों है, राइट, वाई नॉट वन सिंगल ऑब्जेक्ट और उसी से हमारा पूरा काम हो जाए, क्योंकि सबका फीचर अलग अलग है। कॉस्ट सेंटर एक डिफरेंट पर्पस के लिए है, आईओ एक डिफरेंट पर्पस के लिए, WBS एक डिफरेंट पर्पस के लिए है। प्रोडक्शन ऑर्डर ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा होगा वहाँ प्रोडक्शन ऑर्डर यूज होगा, राइट। यहाँ पे कॉस्ट वॉस्ट बजटिंग वजटिंग कुछ नहीं होता, यहाँ पे दूसरा कंसेप्ट होता है जो हम बाद में देखेंगे, अभी हम इसकी बात नहीं करते। अभी हम इन तीन पे रहते हैं, इन तीन पे, कॉस्ट सेंटर, आईओ, WBS।
तो पहला ये कि कॉस्ट सेंटर जो है वो एक मैक्रो लेवल पे हो रहा है। मतलब ये कि मैंने लेट्स से मैंने प्लानिंग करनी है कि मेरा बिजनेस में जो कॉस्ट आ रहा है कितना कितना आएगा। तो मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे। तो लेट्स से मेरे पास एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। लेट्स से दिस इज माय मार्केटिंग कॉस्ट सेंटर, ठीक है। फिर मेरा लेट्स से मैंने एक दूसरा कोई कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर लिया है, इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये कॉस्ट सेंटर लेट्स से मेरा यूटिलिटी कॉस्ट को रख रहा है, ठीक है। यूटिलिटी कॉस्ट बोले तो बिजली, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई है, वो सब चीज़ है। फिर मैंने एक और कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर लिया जहाँ मेरे लेबर कॉस्ट को स्टोर हो रहा है। लेट्स से सैलरी बोलता हूँ, या चलो सैलरी के लिए कॉस्ट सेंटर बना लिया मैंने। तो इस तरह से बेसिकली जितने भी कॉस्ट होंगे आपको कहीं ना कहीं स्टोर करोगे आप, राइट, कहीं ना कहीं प्लान करोगे। अब देखो इसमें क्या है, मैं एक एग्जांपल पर चलता हूँ मार्केटिंग का। तो मान लो ये मार्केटिंग का कॉस्ट सेंटर बनाया। इसमें क्या होगा, इनिशियली आप कॉस्ट को प्लान करोगे और फिर एक्चुअल बुक करोगे, करेक्ट है। कॉस्ट को प्लान करोगे, एक्चुअल बुक करोगे। तो लेट्स से दिस इज माय प्लान। हमने कॉस्ट सेंटर की प्लानिंग कर ली कि हमारा कॉस्ट, सॉरी, हमारे हमने कॉस्ट की प्लानिंग कर ली कि मेरा मार्केटिंग पे कितना खर्चा होगा, ठीक है। और फिर जब मेरा एक्चुअल्स आएगा तो मैं एक्चुअल भी बुक करूंगा इसी में, राइट। ये मान लो मेरे एक्चुअल्स चल रहे हैं और ये मेरा प्लानिंग चल रहा है। तो एक्चुअल वर्सेस प्लान मैं किसी भी टाइम देख सकता हूँ, दैट इज फाइन। साल के स्टार्ट में पूरे साल की प्लानिंग होती है, मतलब 12 महीने की प्लानिंग करते हो आप। बिजनेस जो होता है वो पूरे 12 महीने की प्लानिंग करता है। और ऑब्वियसली इनिशियली प्लान कर लिया इसका मतलब ये नहीं कि उसी पे स्टिक करना आपकी पत्थर की लकीर बन गई है, नहीं। आप उसको रिवाइज भी करते हो, क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे बिजनेस उसको रिवाइज भी कर सकता है कि हमारा अब चलो सिनेरियो चेंज हो गया है और हमें प्लान को चेंज करना है, राइट। बिकॉज मेरा एक्चुअल्स भी चेंज हो रखा है काफ़ी ज़्यादा, तो मुझे प्लानिंग भी उसी हिसाब से करनी है। तो प्लान होता है पूरे 12 महीने के लिए, बट एवरी क्वार्टर आप उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। बिजनेस उसको रिवाइज भी करता है, प्लान एडजस्ट करता है अपना, राइट। अब देखो प्लानिंग आपने की, तो प्लानिंग का मतलब क्या है, आप बेसिकली डिसाइड कर रहे हो कि मेरे मार्केटिंग पे कितना खर्चा होगा। तो ऑब्वियसली इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स आएंगे। तो मैं बोलता हूँ लेट्स से मेरा ऑनलाइन मार्केटिंग, मैं ये प्लानिंग वाला पार्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। ऑनलाइन मार्केटिंग पे मेरा लेट्स से 5 लाख खर्च होगा। मैंने प्लान किया ऑनलाइन मार्केटिंग पे 5 लाख खर्च होगा। फिर मैंने बोला लेट्स से मार्केटिंग पे मेरा 3 लाख खर्च होगा। एंड लेट्स से प्रमोशनल एक्टिविटीज़ पे, प्रमोशंस पे मेरे लेट्स से 2 लाख खर्च होंगे। मान लो आप कोई टेक फेस्ट होस्ट करते हो जहाँ पे आप प्रमोट दिखा रहे हो अपने प्रोडक्ट को, राइट, अपने सर्विसेज को प्रमोशन कर रहे हो उसकी, उस पर 2 लाख खर्च हो रहा है। तो इस तरह से मैंने प्लान कर लिया कि मेरा 10 लाख कहाँ कहाँ कितना कितना खर्च होगा। ये है हायर लेवल पे, बहुत हायर लेवल पे, राइट। अब क्या होगा कि इसको मैं स्प्लिट करूंगा मंथ टू मंथ बेसिस पे। 5 लाख जो मैंने प्लान किया पूरे साल का, उसको मैं स्प्लिट करूंगा कि हर महीने कितना खर्च होगा, मंथ बाय मंथ 12 महीने में बांटूंगा। एंड एवरी बिजनेस ऑन अर्थ इज सीजनल। ऐसा कोई बिजनेस है ही नहीं जो सीजनल ना हो, राइट। सीजनल मतलब फ्लक्चुएटिंग, एक महीने में ज़्यादा दूसरे महीने में कम। तो एवरी बिजनेस सीजनल। तो यहाँ पे भी जो डिवीजन होगा कॉस्ट सेंटर के अंदर, वो इक्वल अमाउंट कोई ज़रूरी नहीं है, राइट। क्योंकि मेरा बिजनेस सीजनल है तो मैं भी उसको इक्वल अमाउंट नहीं करूंगा। ऑब्वियसली जब नवंबर दिसंबर आता है तो लोग कम ट्रेनिंग करते हैं, और जब अपना अप्रेजल टाइम आता है let's say जून जुलाई या फिर जनवरी फरवरी, तो लोग ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं, राइट। इट इज़ ऑल सीजनल। फेस्टिवल टाइम आएगा तो कम करेंगे। तो एवरी बिजनेस इज सीजनल। तो ये डिवाइड होगा आपका कॉस्ट प्लान बिटवीन 12 मंथ्स इन अनइक्वल अमाउंट। तो वो बिजनेस डिसीजन है किस में कितना डालना है, दैट इज अ बिजनेस डिसीजन। तो मान लिया आपने प्लानिंग कर ली, ठीक है। उसके बाद फिर जब आप ये प्लानिंग करोगे, जब एक्चुअल कॉस्ट आएगा, राइट, तो एक्चुअल कॉस्ट किस तरीके से आएगा, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ये वाले मेरे काम के नहीं है। एक्चुअल कॉस्ट किस तरीके से आएगा, एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा कि लेट्स से तो एफआई मैंने, में कॉस्ट सेंटर पे बुकिंग होगी, उसी के बेस पे आएगा ना। हाँ नहीं, दैट इज टेक्निकल। प्रैक्टिकली मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो, तो एक्चुअल कॉस्ट जो है मैं क्या करूँगा कि अगर मेरा बिजनेस है तो लेट्स से मैंने एक छोटा सा मैंने डिसाइड किया कि हम लोग थोड़ा ऑनलाइन मार्केटिंग पे खर्च करेंगे, ठीक है। हमने डिसाइड किया हम लोग थोड़ा गूगल ऐड करेंगे और
जस्ट स्टाइल पे ऐड करेंगे, एट 5 पे ऐड करेंगे, थोड़ा खर्च करेंगे, ठीक है, गूगल एड्स पे डालेंगे, फेसबुक एड्स पे डालेंगे। तो मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया, स्मॉल प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसका पर्पस है ऑनलाइन मार्केटिंग, ठीक है। इसका ड्यूरेशन मैंने दे दिया है लेट्स से 15 डेज, 15 दिन का ये अपना प्रमोशन होगा। 15 दिन के लिए हम ऐड डालेंगे, ठीक है, गूगल पे और फेसबुक पे। ऑब्वियसली जब प्रोजेक्ट बनेगा और मैं अपनी टीम बनाऊंगा और किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा कि तुम ऐड करो, राइट, ऐड रन करो और चीज़ों को ब्रॉडकास्ट करो, आप ज़्यादा से ज़्यादा फिर वो करो ताकि लोग देखें और आए, राइट, कन्वर्ट हो, प्रोडक्ट सेल हो। तो ये जो प्रोजेक्ट बना मेरा छोटा सा ऑनलाइन मार्केटिंग का 15 दिन के लिए, कोई ना कोई पर्सन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, राइट। साथ ही साथ मैं इसको बजट एलोकेट करूंगा, पूरा पूरा 5 लाख एक साथ नहीं दे दूंगा, राइट। मैं बोलूंगा कि 25,000 एलोकेट कर रहा हूँ, तुम 25,000 में खर्च करो, 15 दिन के लिए कोई ऐड रन करो आप, 25,000 आपको एलोकेट कर रहा हूँ मैं। तो ये बजट दे दिया मैंने उसको 25,000 का, ठीक है, उस बंदे को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। तो इस चीज़ को ट्रैक कैसे करूंगा मैं कि वो कितना खर्च कर रहा है और बजट के अंदर है, बजट के बाहर है, राइट। इस चीज़ को करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक छोटा ऑब्जेक्ट बना दूंगा। मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, ये मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। अब मैं क्या बोलूंगा उस बंदे को कि जब भी तुम खर्च करो इस कॉस्ट ऑब्जेक्ट में स्टोर करो। तो ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है, मेरा इंटरनल ऑर्डर, ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट मेरा आईओ है। इंटरनल ऑर्डर है ये मेरा, जहाँ पे मैंने बजट दे दिया 25,000 का और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी एक बंदे को, रिस्पॉन्सिबल पर्सन दे दिया। उस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बजट एक्सीड ना करे, रिस्पॉन्सिबल पर्सन एक्स 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 एक्स, ठीक है। अब क्या होगा कि उसको मैंने बोल दिया है कि जब भी कॉस्ट इनकर करोगे आप अपने मार्केटिंग के लिए, इसी में आपको बुक करना है, राइट। जब भी वो खर्च करेगा तो अल्टीमेटली अकाउंटिंग एंट्री जब आएगा तो ऐसा ही दिखना चाहिए, डेबिट लेट्स से मार्केटिंग एक्सपेंस, क्रेडिट लेट्स से कैश और बैंक और वेंडर वॉट एवर, राइट। लेट्स से वेंडर ले देता हूँ, यहाँ पे जो भी खर्च किया उसने लेट्स से 10,000 खर्च किए, क्या है ये 10,000 जो है एक मार्केटिंग एक्सपेंस, ये जाना चाहिए मेरे यहाँ स्टोर होना चाहिए। आई शुड बी एबल टू सी कि मार्केटिंग एक्सपेंस पे 10,000 खर्च हुए हैं, ये यहाँ पे मूव करना चाहिए 10K। और क्या है, डेबिट है, डेबिट मार्केटिंग एक्सपेंस 10K यहाँ स्टोर हो जाना चाहिए, राइट। ये स्टोर कैसे होगा, ये जो आईओ है, लेट्स से दिस इज IO1 करके, तो वो पोस्टिंग करते वक्त यहाँ पे IO1 देगा, पोस्टिंग के टाइम पे मार्केटिंग एक्सपेंस के आगे ही विल पुट IO1। जब वो इंटर ऑर्डर 1 देगा इसका मतलब है कॉस्ट फ्लो होगी। ये जो मार्केटिंग एक्सपेंस 10,000 कॉस्ट है, ये इस ऑब्जेक्ट से लिंक कर दिया आपने, तो बेसिकली ये कॉस्ट जाके यहाँ स्टोर हो गई कॉस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर। ये मेरा IO1 ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर ये कॉस्ट फ्लो हो गई 10,000। फिर कभी उसने कोई कॉस्ट इनकर करी, राइट, फिर उसने IO1 यूज किया, फिर से यहाँ पे डेबिट एक्सपेंस आ जाएगा, फिर से डेबिट एक्सपेंस आ जाएगा। यही आपका एक्चुअल कॉस्ट चल रहा है, राइट। और आपने 25,000 की बजट लगा रखी है, 25,000 मेरा बजट अमाउंट है। अब क्या होगा, वो खर्च करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, कभी ना कभी तो बजट को हिट करेगा, राइट। ये मेरी बजट अमाउंट थी, तो वो एक्सपेंस करता गया और उसने जाके ये हिट किया। मैंने उसको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है, चल भाई तू 10% ज़्यादा कर लेना, जितना हो, जितना बजट दिया उससे 10% एक्स्ट्रा तक अलाउड कर दिया मैंने उसको, 10% एक्स्ट्रा अलाउ कर दिया। तो उसने यहाँ तक खर्च किया, ये मेरा एक्चुअल्स हो गया जो कि बजट के ऊपर जा रहा है, ठीक है। वहां तक अलाउ था, उसके बाद अलाउड ही नहीं है उसको, फिर सिस्टम उसको हार्ड स्टॉप दे रहा है, मैंने ऐसा बिहेवियर सेट किया है। अब क्या है कि उसने यहाँ पे कॉस्ट को बुक करी आईओ के अंदर, 25,000 दिया था उसने, मान लो 25 और 10% 2 पॉइंट 27,500, राइट, 27,000 तक मान लो उसने बुक किया। अब वो 27,000 इस आईओ के अंदर बुक है, पर वो कॉस्ट है कहाँ का, वो कॉस्ट है मेरे मार्केटिंग का। मैंने सिर्फ एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना के उसको 25,000 दे दिया था। वैसे ही मैंने एक दूसरा भी प्रोजेक्ट क्रिएट किया, मान लो बिल्कुल सेम टू सेम एक दूसरा प्रोजेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, जिसमें मैंने अगेन एक दूसरे बंदे को दे रखा था रिस्पॉन्सिबिलिटी वाई को, ठीक है, एंड दिस वाज फॉर आउटडोर मार्केटिंग, और उसको मैंने दे रखा था 40,000। मैंने उसको 40,000 दे रखा था, तो 40,000 तक खर्च करो तुम, राइट। 40,000 की बजट दे रखी थी मैंने उसको, लेट्स से इधर कहीं 40,000 है और उसने एक्चुअल खर्च किया यहाँ तक,
ठीक है। सिमिलरली मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट बना सकता हूँ, अलग अलग बंदों को रिस्पॉन्सिबल कर सकता हूँ। मान लो मेरे पास 2 ही है, अल्टीमेटली ये कॉस्ट है कहाँ का, ये कॉस्ट है मार्केटिंग का। तो मार्केटिंग कहाँ होता है, मार्केट में आना चाहिए ना। आईओ में हमने डाल रखा था, आईओ हमने क्रिएट कर रखा था, तो मार्केटिंग में आना चाहिए। तो वो कैसे आएगा, मैं कॉस्ट को मूव करूंगा, मैं आईओ से कॉस्ट को निकालूंगा, सॉरी, आईओ से कॉस्ट को निकालूंगा और मार्केटिंग में मूव करूंगा, तो ही मेरा मार्केटिंग में एक्चुअल बुक होगा, राइट। अदरवाइज एक्चुअल तो जीरो रहेगा। तो क्या होगा, मुझे क्या करना है, मुझे मूव करना है, मुझे यहाँ से कॉस्ट को निकालना है और यहाँ मूव करना है। ठीक है। सिमिलरली मुझे यहाँ से कॉस्ट को निकालना है और यहाँ मूव करना है, बिल्कुल सेम फैशन में। मेरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया, मेरे ऑब्जेक्ट का जो मैंने बनाया था, मुझे यहाँ से निकालना है और यहाँ मूव करना है। ठीक है। क्यों, बिकॉज मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, राइट, ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए, आउटडोर मार्केटिंग के लिए। मेरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया, आई नीड टू मूव इट बैक टू माई कॉस्ट सेंटर। तो जब कॉस्ट सेंटर में आएगा तो एक्चुअल्स राकेश यहाँ पे सर, आ जाएंगे। यस, यस बोलो। तो जब पहले जब कॉस्ट बुक करते टाइम पे तो कॉस्ट सेंटर नहीं दिया होगा आपने, नहीं, तो वो तो कॉस्ट बुक हो ही जाएगा ना। कॉस्ट सेंटर नहीं दिया मैंने, आईओ में दिया। इनिशियली मैंने नहीं, कॉस्ट बट सेंटर में आप ये भी तो कर सकते हो ना कि आप कॉस्ट सेंटर और आईओ दोनों भी तो दे सकते हो ना आप। हाँ नहीं, अभी हम उस चीज़ को कॉम्प्लिकेट नहीं करते, अभी हम पहले आईओ और सेंटर के बारे में डिफरेंस समझते हैं। ठीक है। वो सब आगे आएगा, कब दोनों देते हैं कब नहीं देते हैं, ठीक है, वो सब आगे आएगा। ओके। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए बनाया, शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोजेक्ट था तो आईओ यूज़ कर लिया। और सिंपल प्रोजेक्ट था, एक ही बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, इसलिए आईओ यूज़ किया। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत सारे बंदे होते तो मैं WBS यूज़ करता। ठीक है। पर यहाँ एक ही बंदा रिस्पॉन्सिबल था, यहाँ भी एक ही बंदा रिस्पॉन्सिबल है, छोटा प्रोजेक्ट है, 25-40 हज़ार की बात है। तो आईओ क्रिएट किया, एक इंटर ऑर्डर ये है, दूसरा इंटर ऑर्डर ये है। ठीक है। जैसे यहाँ पे कॉस्ट IO1 में बुक हुआ है, वैसे ही वहाँ कॉस्ट IO2 में बुक हो रहा होगा। अल्टीमेटली मेरा काम खत्म हो गया। अब मैं इस कॉस्ट को मूव करूंगा और अपने कॉस्ट सेंटर में डाल दूंगा। तो ये जो मूवमेंट है, इसको हम बोलते हैं सेटलमेंट। यही होता है आईओ सेटलमेंट ना। तो बहुत लोग होते हैं जो आईओ सेटलमेंट करते तो है, पर उनको यही नहीं पता हम कर क्यों रहे हैं, हमें क्यों ये मूवमेंट चाहिए, राइट। ये मूवमेंट चाहिए ही क्यों, हमें, हम सेटल कर ही क्यों रहे हैं, आईओ में है तो हम उससे खुश क्यों नहीं है। खुश इसलिए नहीं है बिकॉज ये आईओ में पड़ा हुआ है, हमारा काम खत्म हो चुका है, वी नीड टू मूव इट बैक टू माई कॉस्ट सेंटर जहाँ से हमने कॉस्ट पुल किया था। अब अगर मैं कॉस्ट सेंटर सेटल करूंगा तो रिसीवर हो जाएगा मेरा कॉस्ट सेंटर, सेंडर हो जाएगा मेरा आईओ। यहाँ का नेट बैलेंस जीरो हो जाएगा, सारा कॉस्ट यहाँ से निकल के यहाँ पहुँच जाएगा, करेक्ट। यहाँ से कॉस्ट निकल के यहाँ पहुँच जाएगा, बराबर है। ये पूरा खाली हो जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। सिमिलरली आपने इसको सेटल किया, ये वाला आईओ सेटल करोगे, अगेन दिस इज द सेंडर, कॉस्ट सेंटर इज माई रिसीवर, यहाँ से वहाँ सेटल हो जाएगा। तो ये जो कॉस्ट है, इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर करता हूँ। ठीक है। ये जो कॉस्ट है दिस विल मूव हियर, ये कॉस्ट यहाँ आ जाएगा, राइट। तो अभी आप रिपोर्ट रन करोगे अपना मार्केटिंग कॉस्ट सेंटर का, तो यू विल गेट टू सी मेरा प्लान कितना था, मेरा एक्चुअल कितना था, राइट। अब ये काम हम डायरेक्टली कॉस्ट सेंटर में क्यों नहीं बुक किए, हम डायरेक्टली चाहते तो यहाँ बुक कर सकते थे, हमने आईओ में क्यों बुक किया, बिकॉज यहाँ कंट्रोल नहीं है। यहाँ 25,000 पे मैंने लिमिट लगा रखी है, तो वो 27,000 तक गया और उसके बाद नहीं कर पाया। यहाँ ऐसी कोई लिमिट नहीं है कॉस्ट सेंटर में, कॉस्ट सेंटर में प्लान वर्सेस एक्चुअल आप करते चले जाओ, बुकिंग करते चले जाओ, होता चला जाएगा। यहाँ कोई बजटिंग की फंक्शनैलिटी नहीं है। तो मुझे चीज़ों पे कंट्रोल चाहिए था, तो मैंने आईओ में लेके गया, सेपरेट प्रोजेक्ट बनाया और वहाँ पे चीज़ों को मैनेज किया और फिर वापस कॉस्ट लेके आ गया। सिमिलरली वही काम यहाँ पे भी किया, आईओ बनाया, चीज़ों को मैनेज किया, कंट्रोल में रखा, और जब सब काम खत्म हो गया तो उसको लेके यहाँ आ गया, राइट। ताकि प्लान और एक्चुअल कंपेयर कर सके हम मार्केटिंग लेवल पे, ब्रॉडर लेवल पे। तो दिस मार्केटिंग जो कॉस्ट सेंटर है, इट इज़ एट ए वेरी मैक्रो लेवल, ब्रॉडर लेवल पे है, राइट। लेकिन ये जो आईओ है, ये सब बड़े स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्रिएट होते हैं, और काम खत्म तो आईओ खत्म, सेटल कर दोगे इट बिकम जीरो, आईओ आप क्लोज भी कर सकते हो। तो आईओ के बहुत सारे स्टेटस होते हैं, पहले होगा क्रिएटेड, फिर रिलीज्ड, फिर आपका सेटलमेंट रूल क्रिएटेड, फिर सेटलमेंट एग्जीक्यूटेड, इस तरह से बहुत सारे स्टेटस होंगे। उसी में एक आएगा टेक्निकली कंप्लीट, फिर एक आएगा क्लोज्ड, राइट। क्लोज्ड मतलब ये सब क्लोज हो गए, खत्म हो गए। कॉस्ट सेंटर में ऐसा कोई खास स्टेटस है नहीं, ऐसा कोई स्टेटस ही नहीं है, बिकॉज इट इज ऑन मैक्रो लेवल, और ये ईयर बाय ईयर चलता रहेगा, राइट। ये खत्म हो जाएगा,
काम खत्म हुआ, सेटलमेंट किया, IO इज डेड, IO इज क्लोज्ड। सिमिलरली दिस IO इज क्लोज्ड। क्रिएट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमें बजट कंट्रोल चाहिए। कॉस्ट सेंटर में वो फीचर नहीं है बजट कंट्रोल का, इसलिए हम कॉस्ट सेंटर के थ्रू नहीं किए, डायरेक्टली यहाँ बुकिंग नहीं किए, हमने इसमें बुक किया, राइट, सो दैट वी गेट द एडवांटेज ऑफ बजटिंग एंड हम कंट्रोल लगा सके कुछ। तो क्लियर है ना अभी कि हमने डायरेक्टली यहाँ बुक क्यों नहीं किया और यहाँ क्यों किया, और सेटलमेंट का पर्पस क्या होता है? इतना क्लियर है? हाँ क्लियर है राकेश। राइट, अब देखो तो ये तो हो गया कि हमारा IO यूज़ किया। अगर मेरा मान लो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बनाता मैं, जिसमें दो चार नहीं मतलब 10-15 लोग इन्वॉल्व है या 25-30 लोग इन्वॉल्व है, राइट, जैसे बोला मेट्रो का प्रोजेक्ट, तो वहाँ एक दो आदमी नहीं होंगे, वहाँ बहुत सारे होंगे। तो या तो मैं एक काम करूँ कि मैं ढेर सारे इंटर ऑर्डर बनाऊँ, हर एक इंटर ऑर्डर अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है, कोई कनेक्शन नहीं है आपस में। तो मैं एक काम करूँ, मैं ऐसे ऐसे 50 इंटर ऑर्डर बनाऊँ, हर एक इंटर ऑर्डर का एक पर्सन रिस्पॉन्सिबल करूँ, बजटिंग करूँ, राइट। तो एक तो तरीका ये है, 50 IO बनाया और सबके सब इंडिपेंडेंट है आपस में। लेकिन रियल बिजनेस में क्या है, रियल बिजनेस में सब आपस में कनेक्टेड है, क्योंकि एक सिंगल प्रोजेक्ट है, सबके सब लोग एक सिंगल प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, सब कनेक्टेड है। एक बंदा अपना काम खत्म करेगा तो दूसरा बंदा अपना काम स्टार्ट करेगा, मतलब डिपेंडेंसी है, कनेक्शंस है, राइट। तो आप अगर इंडिविजुअली 50 IO बनाओ और कोशिश करो मैनेज करने की, इट विल गो रॉन्ग, आप गलत चले जाओगे, आपको एक्चुअल फिगर नहीं मिल पाएगी, क्योंकि डिपेंडेंसी भी है आपस में। इस केस में जहाँ पे डिपेंडेंसी हो, ढेर सारे लोग इन्वॉल्व हो, पर्सन रिस्पॉन्सिबल मल्टीपल हैं, बहुत बड़ा अमाउंट है, ह्यूज अमाउंट है, बड़ा ड्यूरेशन है, वहाँ पे WBS यूज करते हैं, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हायरार्की होती है, राइट। हायरार्की का मतलब ये है कि लेट्स से मैंने बोल दिया मेरा प्रोजेक्ट है मैरिज, इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज समझने में आसानी होती है, राइट। एक जगह मैंने मैरिज के नीचे बना दिया लेट्स से लाइटिंग, एक जगह बोल दिया लेट्स से फूड, डेकोरेशन, ठीक है, ट्रैवल। ट्रैवल की भी एक अलग टीम बनती है, राइट, किसको आना किसको ले जाना, कौन 4-5 बंदे रहेंगे, ट्रैवल। और होटल। भी कुछ, हाँ होटल बुकिंग के लिए भी रहेगा, करेक्ट, होटल हो गया। और क्या खर्चे हो सकते हैं जिसको हम बांट सकते हैं? ठीक है, मान लो इतना है। अब इसमें क्या है कि लाइटिंग में किसी बंदे को, ये बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट दिख रहा है यहाँ पे, लाइटिंग के लिए भी किसी बंदे को आप असाइन करोगे, फूड अरेंजमेंट किसी और के हाथ में दे रखे होगे, राइट, डेकोरेशन किसी और को दे रखे होगे, ट्रैवल वेल किसी और को दे रखे होगे, राइट, होटल बुकिंग कोई और कर रहा होगा, कोई होगा जो क्लोथ्स परचेस कर रहा होगा, फैब्रिक क्लोथ्स जो भी है। तो ये सब अलग अलग पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, साथ ही साथ सबको अपना अपना बजट दे रखा होगा आपने, आपने इसको अपना बजट दे रखा होगा, इसको अपना, इसको अपना, इसको अपना। अब इनके नीचे भी हो सकता है इन्होंने फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर रखा हो। फूड अरेंजमेंट में आपने, इन जो बंदा रिस्पॉन्सिबल है ही इज मैनेजिंग थिंग्स, और इसने इसके नीचे भी कुछ लोग रखे हुए हैं, किसी ने स्वीट्स का डिपार्टमेंट ले लिया, किसी ने नमकीन का डिपार्टमेंट ले लिया, किसी ने कोई और डिपार्टमेंट ले लिया। तो अल्टीमेटली यहाँ पे किसी ने वेज का ले लिया, किसी ने नॉन वेज का ले लिया, आपने उसको बांट दिया, किसी ने चाट फाट का ले लिया। तो यहाँ पे क्या है कि फूड अरेंजमेंट जो है, अब इसमें भी अलग अलग लोग इन्वॉल्व है, साथ ही साथ अलग अलग बजट इन्वॉल्व है। टोटल बजट जो आपको फूड के लिए मिला था, आपने उसको बांट दिया, मिठाई पे इतना बजट, नमकीन पे इतना बजट, वेज पे इतना, नॉन वेज पे इतना, चाट पे इतना, राइट, आपने उसको बांट दिया। सिमिलरली डेकोरेशन वाले में भी आप उसको आइटम वाइज बांटोगे, अलग अलग बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दोगे। तो ये जो नीचे आ रहे हैं मेरे फूड अरेंजमेंट के नीचे, लेट मी मेक इट वर्ड हॉरिजेंटल, नहीं क्या हुआ, हॉरिजेंटल क्यों नहीं आया? हाँ, ठीक है, तो ये फूड अरेंजमेंट के नीचे आपने फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और हर एक बंदा रिस्पॉन्सिबल है, साथ ही साथ सबका अपना अपना बजट है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक WBS होगा, ये एक WBS होगा, ये एक WBS होगा, ये एक WBS। तो आपने क्या किया, इंटायर वर्क को आपने ब्रेक डाउन किया है, इसके लिए बोलते हैं वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर। मेरा टोटल वर्क क्या है, मैरिज, ये मेरा पूरा वर्क है, उसको मैंने फर्दर ब्रेक डाउन किया अलग अलग
कंपोनेंट्स में, फिर उसको फर्दर ब्रेक डाउन किया अलग अलग कंपोनेंट्स में, राइट। और जो बजट असाइन हो रहा है वो हम लोवेस्ट लेवल पे भी असाइन कर सकते हैं बजट, तो बजट यहाँ पे भी असाइन रहेगा सबको, साथ ही साथ सबका टोटल वाला बजट यहाँ पे भी असाइन रहेगा, सिमिलरली इसको भी बजट है, इसको भी बजट है, और सब मिलाओगे तो आपको मैरिज का बजट मिल जाएगा कितना बजट है। अब जब एक्चुअल खर्चा होगा, जो खर्चा चार्ट पे हो रहा है वो यहाँ बुक होना चाहिए, राइट। जो खर्चा स्वीट्स पे हो रहा है वो यहाँ बुक होना चाहिए। जब रिपोर्ट रन करोगे तो यू कैन रन द रिपोर्ट फॉर स्वीट्स ऑल्सो, यू कैन रन द रिपोर्ट फॉर चार्ट ऑल्सो, यू कैन रन द रिपोर्ट फॉर फूड अरेंजमेंट ऑल्सो, और साथ ही साथ आप जब मैरिज का रिपोर्ट रन करोगे तो इन सब का कॉस्ट एक साथ दिखाई देगा, और उसमें भी आपको बहुत क्लियरली दिखेगा कि किसके अंदर कितना कॉस्ट है, राइट। लाइटिंग पे कितना कॉस्ट आ रहा है, डेकोरेशन पे कितना कॉस्ट आ रहा है, फूड पे कितना आ रहा है, आप उसको फर्दर ब्रेक डाउन करके देख सकते हो कहाँ से कितना आ रहा है, किसी ने एक्सीड किया, ठीक है, नमकीन वाले ने कॉस्ट एक्सीड की, राइट। तो ये जो बंदा रिस्पॉन्सिबल है उसकी जिम्मेदारी है कि एक्सीड नहीं करना है, राइट। अगर वो एक्सीड करेगा तो वो यहाँ पे भी एक्सीड होगा और फिर अल्टीमेटली ओवरऑल प्रोजेक्ट का भी कॉस्ट बढ़ेगा। तो आपके जो लोवेस्ट लेवल है कॉस्ट वहाँ बुक होता है, और जो ऊपर वाले हैं वहाँ से सिर्फ रिपोर्टिंग होती है, कॉस्ट की बुकिंग होती है लोवेस्ट लेवल पे, ऊपर जो है वो रिपोर्टिंग वाले हैं, जस्ट लाइक कॉस्ट सर सेंटर ये हायर। आईओ से डिफरेंट, सॉरी, इंटरनल ऑर्डर से कैसे डिफरेंट है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर सर? आईओ जो है वो स्टैंड अलोन है, यहाँ पे कोई हायरार्की नहीं है ना। अगर मैं जैसे यहाँ पे हायरार्की है, इसके नीचे ये सब है, जैसे अगर इनके बीच में कनेक्शन में एस्टेब्लिश करूँ, मैरिज के नीचे ये सब है, ठीक है ना, बाकी समझ रहा हूँ। अब इसके नीचे जो है ये सब है, तो इनके बीच में लिंकिंग है, स्वीट, नमकीन, वेज, नॉन वेज, चाट, इनके ऊपर आता है फूड अरेंजमेंट। तो ये हायरार्की है, टॉप इज ये मैरिज, उसके नीचे फर्स्ट लेवल, उसके नीचे सेकंड लेवल, राइट। ये सब हायरार्की चल रहा है। आप कॉस्ट यहाँ बुक सर करोगे, ये मान लो आपने सारे कॉस्ट, डब्ल्यूबीएस सॉरी, जैसे मैरिज, फूड अरेंजमेंट, स्वीट्स और ये सब मतलब सारे सब सेक्शंस डब्ल्यूबीएस कहलाएंगे कि जो हमने 5 सेक्शन सब फूड अरेंजमेंट के अंदर 5 कैटेगरी बनाई वो सिर्फ डब्ल्यूबीएस है? ओके। देखो हम लोग कहते सबको ही WBS है, ठीक है। जैसे ये टॉप वाला है तो इसको हम लोग नॉर्मली प्रोजेक्ट बोल देते हैं, टॉप वाले को नॉर्मली हम लोग प्रोजेक्ट के नाम से बोलते हैं, और उसके नीचे जितने हैं सबको WBS बोल देते हैं। लेकिन जब कॉस्ट की बुकिंग करते हैं, राइट, तो हम लोग लोवेस्ट लेवल बुकिंग करते हैं। जैसे कॉस्ट सेंटर लोवेस्ट लेवल पे होता है, राइट, उसके ऊपर ग्रुप्स होते हैं, बुकिंग ग्रुप्स में नहीं होती है, बुकिंग कॉस्ट सेंटर में होती है, राइट। WBS से इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है बस, आप चाहो तो इसमें भी कॉस्ट बुक कर सकते हो, जब हम आएंगे WBS पे डिटेल में तब दिखाएंगे। वहाँ पे एक चेक बॉक्स होता है जिसमें आप बताते हो कि यहाँ कॉस्ट बुकिंग अलाउड है या नॉट अलाउड है। तो मैं कॉस्ट की बुकिंग यहाँ भी कर सकता हूँ, मैं कॉस्ट की बुकिंग यहाँ भी कर सकता हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग लोवेस्ट लेवल पे ही करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, बट मैं कुछ सेटिंग करूँ जिसके कारण यहाँ भी बुकिंग अलाउ हो जाएगा। और हम सबको WBS ही बोलते हैं, इनफैक्ट टॉप लेवल को भी मैं WBS ही बोलते हैं हम लोग। टॉप लेवल को नॉर्मली हम लोग प्रोजेक्ट के नाम से भी बोलते हैं, जो टॉप वाला रहेगा उसको हम प्रोजेक्ट के नाम से बोल सकते हैं, प्रोजेक्ट मैरिज, और उसके अंदर सारे WBS। बट अगेन दिस इज ऑल्सो ओके। WBS, दिस इज ऑल्सो WBS एंड दिस इज ऑल्सो WBS, ओनली थिंग इज इट इज एट अच्छा, टॉप लेवल, दिस इज एट बॉटम लेवल। डायरेक्टली अगर हम लोग फूड अरेंजमेंट में अगर बुकिंग कर देंगे तो फिर हम लोग ब्रेकडाउन में नहीं देख पाएंगे, जैसे नमकीन, नहीं नहीं, हाँ, ब्रेकडाउन में नहीं दिखेगा, फिर यहाँ नहीं दिखेगा। डायरेक्ट बुकिंग फूड अरेंजमेंट में दिखेगी। यस, अगर आपने बुकिंग यहाँ की है तो सिस्टम कैसे उसको ब्रेक करेगा, सिस्टम को नहीं पता कि वो कहाँ से आ रहा है, करेक्ट, राइट। मतलब जिस हायरार्की में आप अगर वो कर दोगे बुकिंग तो वही दिखाएगा, ब्रेक हाँ, ब्रेक में नहीं दिखाएगा। राइट। अगर आपका कोई खर्चा हुआ है, मान लो इनमें से कोई भी नहीं हो रहा है, बट आपको पता है कि वो फूड पे है, तो आप यहाँ बुकिंग करोगे डायरेक्टली, राइट। जो इनमें से किसी कैटेगरी में नहीं बट स्टिल इट इज ऑन तो फूड, तो आप यहाँ पे कर दोगे, जैसे मान लो गैस सिलेंडर। कॉस्ट कहाँ पे बुक करनी, कॉस्ट कहाँ बुक करनी ये पहले से डिसाइड हो जाता है या फिर ये कभी भी चेंज कर सकते हैं? ये बिजनेस वाइज कैसे उसको डिसाइड करते हैं? क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ मुझे, फिर से बोलना। मैं बोल रहा हूँ कि ये कॉस्ट कहाँ पे बुक करनी है, या टॉप लेवल पे करनी है या बॉटम लेवल पे करनी है, तो ये नहीं डिसाइड नहीं, ये कौन तो करता है? और ये जब प्रोजेक्ट की प्लानिंग होगी ना, अब देखो कोई प्रोजेक्ट हाँ, बनता है तो सबसे पहले उसकी प्लानिंग होती है, राइट। प्लानिंग का मतलब सब कुछ, स्टार्टिंग फ्रॉम टाइमलाइन, स्टार्टिंग फ्रॉम पीपल इन्वॉल्व। तो जब प्रोजेक्ट बनेगा, राइट, तो वो लोग पहले से डिसाइड करेंगे कि कितने हम लोग कंपोनेंट्स करेंगे, मतलब कितने ब्रेक डाउन करेंगे, उसके नीचे भी ब्रेक डाउन करेंगे, डिपेंड करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। स्वीट्स अगर किसी एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मैं स्वीट्स को ब्रेक डाउन नहीं करूंगा, लेकिन अगर स्वीट्स किसी दो बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मैं स्वीट्स को भी ब्रेक डाउन करूंगा।
तो डिपेंड करता है कि आपका एक्चुअल में जो रियल प्रोजेक्ट है, ये तो सिर्फ रेप्लिकेट कर रहे हो एसीपी में, राइट? जो रियल में प्रोजेक्ट है उसका सिनेरियो क्या है। तो ये मेरे अगर लोवेस्ट लेवल है तो मैं इनको ब्रेक डाउन नहीं करूंगा। इन केस मुझे मालूम पड़ता है नहीं यार, मेरा जो चार्ट वाला डिपार्टमेंट है वो 3 लोग हैंडल कर रहे हैं, उसमें 3 लोग इन्वॉल्व हैं, तो मैं उसको ब्रेक करूंगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 लोगों के ऊपर है, तो मैं इसको भी इसके नीचे ब्रेक करूंगा। एसीपी आपको कहीं भी स्टॉप नहीं करेगा कि आप कितने लेवल तक ब्रेक कर सकते हो, इट विल अलाउ यू। बट अगर आपने बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग कर दी है, राइट, तो अननेसेसरी हो गया। वो आपको इतने डिटेल लेवल पर रिपोर्ट नहीं चाहिए था, आपको सिर्फ वहां तक चाहिए था जहां तक रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन हो सके, राइट? क्योंकि Okay. एक ऑब्जेक्ट का So, रिस्पॉन्सिबल पर्सन एक ही होगा। और एक बार आपने okay. प्लानिंग के टाइम पे, हाँ लेट मी कंप्लीट, प्लानिंग के टाइम पे ये डिसाइड हो जाता है कि मुझे किस लेवल तक ब्रेक करना है और कहाँ कहाँ बजट मेंटेन करना है, राइट? तो जो बंदा चार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मान लो हमारे केस में एक ही है, जो बंदा चार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको पता है कि मेरा जब एक्सपेंस आएगा तो उसको यही वाला डब्ल्यूबीएस अलोकेट हुआ है, वो इसी में कॉस्ट बुक करेगा। तो ये पहले से डिसाइड हुआ है कि चार्ट का खर्चा आएगा तो आपको ये वाला डब्ल्यूबीएस में डालना है, अगर नमकीन का खर्चा आएगा तो आपको ये वाला डब्ल्यूबीएस में डालना है, स्वीट में आ रहा तो इसमें डालना है। आप गलत नहीं कर सकते। गलत डब्ल्यूबीएस यूज करोगे तो फिर तो आप चार्ट वाले डिपार्टमेंट को हैंडल करते हो, आपने कॉस्ट यहाँ बुक कर दी, तो वो बंदा आएगा ना घोड़े पे बैठ के कि ऐसा कैसे, मेरे में कॉस्ट कैसे आ गया, आई हैव नॉट इनकर्ड दैट कॉस्ट। तो फिर ये हुआ कि आपने गलत कर दिया एंट्री। आपको अपने वाले Okay. डब्ल्यूबीएस यूज करना है। जैसे टाइम बुकिंग होता है ना ऑफिस में, आप टाइम बुक करते हो डब्ल्यूबीएस में बुकिंग करते हो, तो वो पहले से डिसाइडेड है कि कौन सा प्रोजेक्ट कौन से डब्ल्यूबीएस को यूज करेगा। ओके, सो ये हर एक प्रोजेक्ट पे सेपरेटली ये डिस्कशन होता है इसके लिए, या फिर क्लाइंट लेवल पे ये पहले से डिस्कस हो जाता है उसके बाद फिर जस्ट फॉलो द प्रोसेस? अच्छा, ये जो प्लानिंग है, राइट, ये जो प्लानिंग है ये पूरा बिजनेस करता है, यहाँ कंसल्टेंट्स तो इन्वॉल्व ही नहीं है। यहाँ कंसल्टेंट कहीं ओके, पे भी इन्वॉल्व ही नहीं है प्लानिंग में, ये पूरा प्लानिंग बिजनेस साइड से होगा। और वो लोग इसके लिए टूल ओके, यूज करते हैं, आई थिंक एक टूल आता है माइक्रोसॉफ्ट प्लानर करके, उस पे वो लोग एक्सेल शीट में प्लानिंग करते हैं। और फिर एक्सेल शीट में कुछ फंक्शनैलिटी है जो ग्राफिकली भी दिखाने लगता है, जैसे अभी हम ग्राफ में देख रहे हैं, राइट? तो सिस्टम एक्सेल शीट में मेंटेन करोगे, फिर सिस्टम में अपलोड करोगे तो ग्राफिकली दिखेगा आपको, ऐसे ही हायरार्की टाइप दिखेगा। तो वो करेक्ट। लोग हम लोग मतलब माइक्रोसॉफ्ट ये प्लानर यूज करते हैं। हम लोग भर इनको ये बताते हैं ना कि भाई ये फिजिबिलिटी है या नहीं है, फिर फर्स्ट एस्टिमेशन ये सब हम लोग उन लोगों को देते हैं बिजनेस पे। इस केस में नहीं लगेगा ऐसा, बिकॉज ये तो सालों से चला आ रहा है प्लानिंग वाला काम। हाँ, तो ये तो बिजनेस प्लानिंग तो एक्सेल शीट पे करेगा। अल्टीमेटली जो भी टूल यूज करे, चाहे एमएस प्लानर यूज करे, चाहे एसएपी यूज करे, चाहे कुछ और यूज करे, राइट, प्लानिंग वो लोग एक्सेल शीट में ही करेंगे, उसके बाद अपलोड कर देंगे किसी एक टूल में। एसएपी होगा तो एसएपी में करेंगे, कुछ और होगा तो कुछ और में करेंगे। लेकिन ये प्लानिंग में कंसल्टेंट्स कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि ये वेल टेस्टेड एंड सबको नोन है कि प्लानिंग करने के बाद एसएपी में डेटा अपडेट कर सकते हो आप, राइट, प्लान कॉस्ट डाल सकते हो। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट केस में बजटिंग बोलेंगे रादर देन प्लानिंग, हम इसको बजटिंग बोलेंगे। आप बजट असाइन कर रहे हो कि इससे एक्सीड नहीं करना है ना। तो हर कंपनी आप देखोगे कि मैक्सिमम 7, 8 या 9 लेवल तक जाती है, एसएपी स्टॉप नहीं करता है। आप 99 लेवल्स तक जा सकते हो, पर अगर इतने लेवल तक गए तो अपना ऑपरेशन छोड़ के प्लानिंग में ही करते रह जाएंगे, राइट? तो हर कंपनी केवल 7, 8, 9 लेवल तक जाती है, मैक्सिमम 9 लेवल्स तक, उससे ज़्यादा नहीं जाती है, क्योंकि उतने तक ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांटते हैं। इसके नीचे ये रिस्पॉन्सिबल, तो होगा क्या कि ये जो बंदे हैं ये सब किसको रिपोर्ट करेंगे, इस बंदे को रिपोर्ट करेंगे, ये उनका बॉस होगा। ये किसको रिपोर्ट करेगा, जो ओवरऑल मैनेजर है प्रोजेक्ट का, राइट, उसको रिपोर्ट करेगा। तो ये डब्ल्यूबीएस के अंदर है हायरार्की, राइट, लोअर लेवल, तो ये टॉप लेवल हो गया, ये लोएस्ट लेवल हो गया। आईओ में क्या है, अगर इसी चीज को मैं आईओ के थ्रू अचीव करना चाहूँ, स्टिल मुझे कितने आईओ लगेंगे, ये हो गया कितना, 5 आईओ इधर और 5 आईओ इधर, 10 आईओ क्रिएट करना होगा। और लेकिन सब आईओ इंडिपेंडेंट होगा, राइट, हर आईओ इंडिपेंडेंट होगा, उसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं होगा। तो मुझे फूड अरेंजमेंट का देखना है तो मुझे बेसिकली इन 5 आईओस का रिपोर्ट चाहिए। तो या तो मैं मैनुअली जाके डालूँ रिपोर्ट के अंदर कि ये पांचों आईओ सेलेक्ट करो और दिखाओ, क्योंकि वहां पे ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सीधा फूड अरेंजमेंट डालूं और मुझे इनका रिपोर्ट आ जाए, क्योंकि कनेक्शन ही नहीं है, हायरार्की नहीं है कि मैं फूड रिपोर्टिंग के अरेंजमेंट लिए ये डालूं और बड़ा ये आ जाए। डिफिकल्ट हो जाएगा, रिपोर्टिंग के लिए ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। नॉट अगर मान जस्ट लो कि रिपोर्टिंग, हाँ सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं, उसके अलावा भी ऑपरेशंस भी डिफिकल्ट होगा, क्योंकि हम्म आपस में इंटरकनेक्शंस होते हैं बहुत ज़्यादा। हम्म। रियल प्रोजेक्ट में जब तक आपकी पटरी नहीं बनी है तब तक आप बोगी कैसे बिठा दोगे। करेक्ट।
बोगी बिठाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई और लेके रखा है, पटरी बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई और लेके रखा है, राइट। तो आपकी पटरी पहले तो बननी चाहिए, तो पहला वाला काम कंप्लीट होगा तो ही सेकंड काम स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे इस केस में आप यहाँ शेड्यूल कर सकते हो, आप यहाँ डिपेंडेंसी सेट कर सकते हो इस वाले काम में, कि चलो डेकोरेशन मेरा, फूड अरेंजमेंट डेकोरेशन नहीं, ठीक है, लाइटिंग ठीक है, चलो ठीक है, किस पे आते हैं, मान लो डेकोरेशन करने के बाद ही मुझे लाइटिंग पे आनी है, तो डेकोरेशन को मैं फर्स्ट करूंगा, जब ये कंप्लीट होगा तो ही मेरा लाइटनिंग वाला काम स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है ना। या फिर मैं होटल वाले काम पहले करूंगा और होटल बुकिंग पहले करूंगा, उसके बाद ही कपड़े वपड़े खरीदने पे जाऊंगा, तो होटल वाला काम पहले होना चाहिए और वो कंप्लीट होगा तो ही क्लोथ का काम स्टार्ट हो। तो मैं डिपेंडेंसी सेट कर सकता हूँ कि जब ये हो उसके बाद ही सिस्टम ये अलाउ करेगा, जब तक ये कंप्लीटेड मार्क नहीं होगा सिस्टम ये अलाउ नहीं करेगा। जैसे पटरी और बोगी का मैंने एग्जांपल दिया कि आपका पटरी कंप्लीट हो गया है तो ही आप बोगी पे काम स्टार्ट करो। या फिर अगर आप ऐसे सोचो कि कार बन रही है, राइट, तो कार का पेंटिंग सबसे लास्ट में होता है, राइट। जैसे आप कोई लकड़ी का काम भी करवा रहे हो, फर्नीचर बनवा रहे हो, तो पेंटिंग इज द लास्ट थिंग। जब तक आपका सब कुछ रेडी नहीं होता पेंटिंग में हाथ नहीं लगाएगा वो, सब कुछ जोड़ने जाड़ने के बाद लास्ट में सिर्फ पेंट करता है और सुखा देता है, हो गया रेडी। तो पेंटिंग इज डिपेंडेंट कि पुराना सारा काम खत्म हो चुका हो, राइट। कार में भी सेम काम है, कार में भी पेंटिंग होती है तो लास्ट स्टेप होता है, पहले उसके पहले सारा काम हो चुका हो, सारी टेस्टिंग हो चुकी हो, सब कुछ हो गया तब लास्ट में पेंटिंग होगा। तो इट्स अ डिपेंडेंट एक्टिविटी। तो तो यहाँ राकेश, पे आप डिपेंडेंसी सेट कर सकते WPS हो। में हम इस चीज पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमारा सबसे लास्ट स्टेप पेंटिंग है और हम्म। लेट सपोज उसको हम सेकंड लास्ट में पहले ही ले लेते हैं उसको, तो वो हमें करने ना दे, ऐसी पॉसिबिलिटी है? हाँ, जब तक आपका प्रीवियस वाला कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको करने ही नहीं देगा, आप उसमें डिपेंडेंसी लगा दो। मतलब होटल से मतलब मुझे पहले होटल का काम कंप्लीट करना होगा तभी मुझे क्लोथ्स पे आगे वो मुझे पहुंचाएगा, यस, राइट? यस, यस। आप डायरेक्टली ओके। इसमें कॉस्ट बुक करने जाओगे सिस्टम आपको अलाउ नहीं करेगा, सिस्टम बोल देगा कि आपका फर्स्ट डिपेंडेंट है होटल पे विच इज नॉट येट कंप्लीटेड। ओके। तो ये सब चीजें जो है डिपेंडेंसी, अलग अलग मल्टीपल लोगों का इन्वॉल्व होना, ये आपके इसमें नहीं हो पाएगा, आईओ में नहीं हो पाएगा। डिपेंडेंसी सेट नहीं कर पाओगे, अलग अलग आईओ बनाओगे हर किसी के लिए, तो यहाँ पे मुझे ये 5 और ये एक 4 एक 5 10 आईओ क्रिएट करने होंगे, राइट। मुझे फूड का रिपोर्ट देखना है तो मुझे इन सब का रिपोर्ट रन करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी क्लबिंग टुगेदर नहीं है, ऐसा कोई हायरार्की नहीं है कि मैं फूड का रन करूँ और सबका कॉस्ट मुझे दिखने लगे। क्लियर है ना। हाँ, पर जो हम लोग WPS करेंगे, पे आप इनकम इनकम नहीं बुक कर सकते, सिर्फ कॉस्ट बुक कर सकते हैं, इज इट? WBS पे रेवेन्यू बुक होता है लेकिन बहुत रेयर केस है, मैं उस पर भी आ जाऊंगा बाद में कि कब होता है, बहुत रेयर ओके। केस है। मतलब प्रैक्टिकली बहुत जैसे बहुत ही रेयरेस्ट है वो। कॉस्ट सेंटर बेसिकली एज ए रेवेन्यू ग्रांट ऑफसेट और वगैरह ही आते हैं, ग्रांट राइट? वगैरह बुक होता है WPS? क्या चीज, कम अगेन। कंट्रोलिंग में बेसिकली एक्सपेंस ही मोस्टली यूज होते हैं, मतलब जो भी GL है, कॉस्ट एलिमेंट है, वो केवल एक्सपेंस नेचर के ही आते हैं। नहीं नहीं, अभी किसी कि नहीं, जैसे वो तो ठीक हमारी है। कंपनी नहीं, रेवेन्यू भी, हमारी कंपनी में जैसे कि ग्रांट है तो ग्रांट वहाँ पे बुक होती है WPS में। सॉरी कम अगेन, क्या बुक होता है, मैं सुन नहीं पाया। ग्रांट बुक हो रही है हमारी हमारी कंपनी में, जैसे पब्लिक सेक्टर में ग्रांट्स वगैरह होती है तो ग्रांट वो WPS में बुक होती है, इसलिए ग्रांट मैं बोल। मतलब कॉस्ट है या क्या है, ये ग्रांट का मतलब क्या है। ग्रांट मतलब एक इनकम है, कंपनी की इनकम है वो ग्रांट जो आती है, जैसे कि किसी ने फंड दे दिया एजुकेशन में, किसी ने जैसे कि टाटा ने 10 मिलियन दे दिए यूनिवर्सिटी को, तो दैट अच्छा बिकम्स अ अच्छा अच्छा, ग्रांट। ओके ओके ओके, दैट समझ गया मैं। ग्रांट इज देन कैप्चर्ड इन WPS। नहीं तो रेवेन्यू एलिमेंट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो आप WBS को, उसमें वो चेकबॉक्स आता है कि आप रेवेन्यू बुक करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो ना। तो WBS में वो चेक मार्क होता है कि आपको बिलिंग के लिए यूज करना, मतलब कॉस्ट यूज करना है या बिलिंग, जैसे रेवेन्यू को बिलिंग बोलते हैं, तो एज ए बिलिंग एलिमेंट यूज करना है, तो रेवेन्यू भी बुक हो सकता है। इसमें कौन सा एलिमेंट यूज होगा राकेश? जैसे लेट सपोज कोई रेवेन्यू का एलिमेंट बनाया, कॉस्ट एलिमेंट, तो उस केस में कैटेगरी भी तो जाएगी कॉस्ट एलिमेंट की? रेवेन्यू कैटेगरी फिक्स रहता है, कैटेगरी 11 है शायद जो फिक्स है रेवेन्यू के लिए। ओके। रेवेन्यू कैटेगरी फिक्स है। कैटेगरी पे आएंगे, कुछ लोगों को, कुछ लोग नए हैं सीईओ के लिए, उनको कैटेगरी शायद उतना नहीं समझ रहा होगा अभी ना कैटेगरी क्या है। ओके। anyway, तो देखो यहाँ पे
हाँ, WBS IO का डिफरेंस समझा। अगेन WBS इज ऑल्सो फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। शादी हो गई, काम खत्म, राइट। फिर क्या करोगे, जो भी कॉस्ट था वो उठा के आप कॉस्ट सेंटर में ले जाओगे, बराबर है। इस पूरे प्रोजेक्ट को सेटल कर दोगे आप। इस पूरे प्रोजेक्ट को मतलब जितना भी कॉस्ट था सब कुछ निकाल के जो आपका मेन कॉस्ट सेंटर रहा होगा, मेन कॉस्ट सेंटर वहां पे लेके चले जाओगे, क्योंकि ये तो आपने स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए बनाया था। प्रोजेक्ट मैरिज, काम खत्म, शादी होगी, काम खत्म, अब ये पूरा का पूरा कॉस्ट निकाल के जो मेन कॉस्ट सेंटर था वहां सेटल करोगे। तो WBS में भी सेटलमेंट इन्वॉल्व है। तो IO का भी सेटलमेंट कर रहे हो, WBS का भी सेटलमेंट कर रहे हो। कॉस्ट सेंटर का सेटलमेंट जैसा कुछ नहीं होता। कॉस्ट सेंटर में कॉस्ट की प्लानिंग होती है और एक्चुअल बुक होते हैं और कंपैरिजन करते हो, बट देयर इज नो बजटिंग। आपको वो स्टॉप नहीं करेगा, ठीक है ना, सिर्फ प्लान करो। यहाँ पे बजटिंग है दोनों केस में, IO में भी WBS में भी, दोनों बजटिंग और दोनों सेम तरीके से बिहेव करते हैं। दोनों में आप उनका बिहेवियर सेट कर सकते हो कि वार्निंग चाहिए कि एरर चाहिए, दोनों में आप टॉपअप लगा सकते हो या फिर ट्रांसफर कर सकते हो, राइट। जिसको बोलते हैं बजट रिलीज कर देना, बजट को आप छोड़ दिए या फिर बजट को ऐड कर दिए, दोनों में होता है। प्रोडक्शन ऑर्डर पे नहीं जाएंगे अभी। प्रोडक्शन ऑर्डर मतलब प्रोडक्शन का कॉस्ट, जब कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, मैन्युफैक्चर हो रही है, तो जो भी कॉस्ट आ रहा है, चाहे वो लेबर से आए, मटेरियल से आए या ओवरहेड आए, वो सब आप एक ऑब्जेक्ट में स्टोर करते हो, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन ऑर्डर। और वहाँ कंपेयर करते हो कि मेरा एक्चुअल कितना है और मेरा टारगेट कॉस्ट कितना है, और फिर जो डिफरेंस आता है उसको वेरिएंस बोलते हैं ना, वो सब बात की बात। सर So Yes. ये WPS PS मॉड्यूल का भी पार्ट है या इज इट कॉल्ड अ डिफरेंट थिंग इन PS नहीं, मॉड्यूल? इट इज PS ओनली। WPS इज PS ओनली, प्रोजेक्ट सिस्टम ही है ये। तो हम लोग यहाँ पे ओके सीखेंगे फ्रॉम कंट्रोलिंग पर्सपेक्टिव, राइट। क्योंकि हम लोग कंट्रोलिंग साइड से सीखेंगे, तो हम लोग इसको कंट्रोलिंग पर्सपेक्टिव सीखेंगे कि कंट्रोलिंग साइड से हमें कितना आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे IO एंड WPS आर वेरी सिमिलर। आप एक बार IO सीख लेते हो तो WPS इज ऑल्सो वेरी सिमिलर, ठीक है। लेकिन ये PS ही है, प्रोजेक्ट सिस्टम ही है। तो PS कंसल्टेंट जो होंगे वो फुल फ्लेज्ड इसी पे काम करेंगे, WPS पे। आप कंट्रोलिंग साइड पे हो, तो जब कोई इशू आएगा तो आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, चाहे वो WPS का हो चाहे वो कॉस्ट सेंटर का हो, राइट। तो आपको उतना आना चाहिए जितना कि कंट्रोलिंग साइड से आना चाहिए आपको, बेसिकली बजट रिलेटेड इश्यूज या फिर सेटलमेंट इश्यूज, राइट। तो वो सब देखेंगे हम लोग कैसे काम होता है, या फिर AUC प्रोसेस में। हाँ, IO का एक और यूज़ है, जैसे मैंने अभी यूज़ की बात की, तो एक तो ये हो गया कि बजटिंग फीचर है तो वहाँ पे आप यूज़ कर रहे हो। दूसरा, IO को AUC प्रोसेस में भी इस्तेमाल करते हैं। AUC प्रोसेस का मतलब है कि इनिशियली आपने कॉस्ट बुक करते गए IO के अंदर। सो लेट्स से दिस इज माय IO, ठीक है, ये मेरा IO है, इंटरनल ऑर्डर। इनिशियली मैं इसमें कॉस्ट बुक करता चला गया, ठीक है, मैंने कॉस्ट बुक की। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि इसको उठा के मैं AUC में डाल दूंगा। मैंने एक AUC क्रिएट कर रखा होगा, असेट अंडर कंस्ट्रक्शन। लेट्स से दिस इज माय AUC। सर एक डाउट है। यस। सर ये अपना जो कॉस्ट प्लानिंग रहता है वो सिर्फ कॉस्ट सेंटर लेवल पे ही होता है, राइट? इट इज नॉट एट WBS एंड IO लेवल। नहीं 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 नहीं, इट इज एट कॉस्ट सेंटर लेवल ओनली, जो इनिशियल प्लानिंग होती है। और फिर जैसे जैसे आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा, आप अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाते जाओगे, क्योंकि स्टार्टिंग में इतना पता कहाँ रहता है, राइट। जैसे मान लो कि मेरा इंस्टीट्यूट है और मैंने डिसाइड किया कि मुझे सर्वर बिठाना है, तो मुझे स्टार्टिंग से कहाँ पता है कि सर्वर बिठाना है। मैंने किसी दिन डिसीजन लिया कि नहीं, हमें सर्वर बिठाना है, हम बाहर से सर्वर ले रहे हैं तो बहुत महंगा पड़ रहा है, तो सर्वर बिठाना है, तो अब इट बिकम्स अ न्यू प्रोजेक्ट ना। ओके। तो ये इस तरह से कंपनी के अंदर भी IO पहले से नहीं पता रहेगा, WBS पहले से, प्रोजेक्ट पहले से नहीं पता पड़ेगा। ये सब अब ऑन दी गो, जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ेगा आपको नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा, नए बंदों को रोल असाइन करना पड़ेगा, राइट। तो ये ऑनगोइंग बेसिस पे रहेगा, काम खत्म हुआ, क्लोज हो गया, बंदे को रिलीज कर दिया, मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा के दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया, किसी और का रिस्पॉन्सिबल पर्सन बना दिया। तो ये ऑनगोइंग है, लेकिन इनिशियली साल के स्टार्ट में जो प्लानिंग होगी वो कॉस्ट सेंटर में होगी। और फिर इसका फिर जो 5 लाख है उसी को आप अलग अलग बजट के रूप में बांटते हो, सेपरेट सेपरेट प्रोजेक्ट्स के ऊपर। अल्टीमेटली 5 लाख से ऊपर नहीं बांटोगे आप, राइट। और फिर ओके जब सर। राकेश, बुक होगा ले आओगे। हाँ बोलो। एक पॉइंट है, जैसे अभी मेरे पास एक रिक्वायरमेंट आई थी ऑलरेडी, क्लाइंट वो S4 HANA पे है, ठीक है, 17.10 पे, 17.10 पे, बट दे आर प्लानिंग टू माइग्रेट टू 2020, राइट।
तो उन्होंने अपने एक्सेल में दिया था कि हाँ दे वांट टू इम्प्लीमेंट किया, मतलब और इंटरनल ऑर्डर प्लानिंग करना चाहते हैं। तो ऑर्डर प्लानिंग वी कैन डू इट ना। प्लान कॉस्ट इन आईओ। यस, इंटरनल ऑर्डर प्लानिंग। आईओ को हम लोग प्लानिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करते एक्चुअली। आईओ को हम लोग बजट के लिए इस्तेमाल करते हैं। बट उनका रिक्वायरमेंट था इंटरनल ऑर्डर प्लानिंग का। टेक्निकली मे बी सिस्टम कोई टी कोड होगा जिससे अलाउ करता होगा, बट आईओ हम लोग नॉर्मली प्लान के लिए यूज नहीं करते हैं, कॉस्ट सेंटर में बेसिकली प्लानिंग एस फॉर करते हैं। आना में तो कॉस्ट सेंटर पे ही ये सारी अवेलेबिलिटी है, तो वहाँ पे भी कर सकते हैं, बट इन्होंने इंटरनल ऑर्डर के लिए भी बोला था। मे बी वो प्लान कॉस्ट बजट को ही रेफर कर रहे हो। प्लान कॉस्ट बजट बजट को को ही। ही रेफर कर रहे हो, ओके। क्योंकि आईओ हम लोग बजट के लिए यूज करते हैं। मतलब प्लानिंग के लिए तो मेरा कॉस्ट सेंटर है ही है, प्लानिंग तो मैं वहीं कर लूंगा। करेक्ट 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 करेक्ट, क्योंकि ये मिड टर्म के लिए होता है ना ये इंटरनल ऑर्डर तो। हाँ, स्मॉल ड्यूरेशन के लिए, मतलब जो एक साल में खत्म हो जाए। ओके। एक और चीज की जस्ट ग्लोबल ज्ञान की प्लानिंग स्टार्ट कहाँ से होती है, मतलब हाउ विल पीपल नो कि हमारा कितना कॉस्ट आएगा। कोई बता सकता है प्लानिंग किसी ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्ट कहाँ से होती है? प्लानिंग करते कैसे हैं कि मेरा कितना कॉस्ट कहाँ पे आने वाला है? स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? नथिंग टू डू विद एसएपी, बस ऐसे ही स्टार्टिंग पॉइंट का क्या होता है आपका किसी भी कॉस्ट प्लानिंग का? आप नए साल में एंटर कर रहे हो, राइट? सर आपको नए साल का कॉस्ट कोटेशन प्लान करना है। कोटेशन से पता चलता है। कोटेशन किस चीज का? मैं पूरी कंपनी की बात कर रहा हूँ ना, मैं एक ओके। ब्रॉड कंपनी की बात कर रहा हूँ। एक बहुत बड़ी तो कंपनी, लेट्स से मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है, ठीक है, और उसको अपना कॉस्ट प्लान करना है अगले एक साल का। तो रेवेन्यू के हिसाब से कॉस्ट प्लान करेंगे ना कि वी वांट 20% रेवेन्यू आउट ऑफ दिस कंपनी, सो करेक्ट करेक्ट अकॉर्डिंगली दिस इज राइट। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो बेसिकली हाँ। ये डायरेक्शंस मिलते हैं, राइट? जो बोर्ड होता है वो डिसाइड करता है कि हाउ एग्रेसिव और हाउ डिफेंसिव वी आर गोइंग टू बी। अगर वो बोलते हैं कि नहीं, हम लोग एग्रेसिवली काम करेंगे, हमें R&D पे बहुत खर्च करना है, हमें अपना रेवेन्यू टारगेट लेट्स से 10% है, जिसको बोलते हैं ना रेवेन्यू गाइडेंस, जो हर कंपनी डिक्लेयर करती है कि हमारा इतना रेवेन्यू गाइडेंस है, मतलब हम इतना अचीव करना चाहते हैं। तो इनिशियली आप वहाँ से स्टार्ट करते हो, रेवेन्यू से चीज़ें स्टार्ट होती हैं। अब किसी ने कंपनी ने बोला कि हमें 10% से ग्रो करना है, तो ऑब्वियसली उसको ज़्यादा लेबर लगेगा, ज़्यादा मटेरियल लगेगा, ज़्यादा प्रोडक्शन लगेगा, ज़्यादा मशीन, ज़्यादा मेंटेनेंस, राइट, ज़्यादा सैलरी। तो हर चीज़ की वॉल्यूम अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगी, हर चीज़ का कॉस्ट अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगा। बट स्टार्टिंग पॉइंट इज रेवेन्यू गाइडेंस, वहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती हैं कि आप कितने एग्रेसिवली जा रहे हो ना। किसी कंपनी ने बोला कि हम लोग लेट्स से क्वांटम कंप्यूटिंग के फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं एंड एग्रेसिवली रिसर्च कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो उस पे R&D पे काफ़ी खर्च करने वाला है, राइट? तो उसका गाइडेंस हो गया कि वो कितना खर्च करने वाला है। तो वो लोग बजट एलोकेट कर देंगे कि हमें R&D पे, लेट्स से हम लास्ट ईयर 5% किए थे अपने रेवेन्यू का, इस बार हम 25% करेंगे, हम उस पर एग्रेसिव जाएंगे, राइट? या फिर सेल्स की बात कर लो, मान लो बाटा ने डिसाइड किया कि हमें 20% से ग्रो करना है, राइट? तो बाटा क्या करेगी? आपने जो भी प्रोडक्ट्स होंगे उनका एग्रेसिव मार्केटिंग करेगी, राइट? सिर्फ प्रोडक्ट बनाने से तो होगा नहीं, एक तो उसको प्रोडक्ट अच्छे बनाने पड़ेंगे, दूसरा मार्केटिंग उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो उनको एग्रेसिव मार्केटिंग करनी होगी, तो हर चीज़ का कॉस्ट अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगा, रेवेन्यू 10-20% से बढ़ाना है तो, राइट? नए सेलिब्रिटीज़, नए एडवर्टाइजमेंट, नया एयर चैनल्स, राइट, हर जगह आपको जाना पड़ेगा, आउटडोर इंडोर ऑनलाइन सब मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तो रेवेन्यू इज द स्टार्टिंग पॉइंट, रेवेन्यू गाइडेंस। Anyway, अब देखो AUC की बात कर रहे थे हम लोग, राइट? कि आपने इंटरनल यूज़ किया, वहाँ पे कॉस्ट बुक करते चले गए, किस पर्पज से कर रहे हो? कि अल्टीमेटली मेरा लेट्स से मशीन रेडी होगा, मशीन को मैं एसेट बोलूंगा, फाइनल एसेट। ये मेरा मशीन है जिसको मैं बोलूंगा फाइनल एसेट या फिक्स्ड एसेट। ये रेडी होने में टाइम है, अभी इसको रेडी होने में 6 महीना, 8 महीना, एक साल लगेगा। तब तक आप कॉस्ट इस आईओ में बुक करोगे, जो भी खर्चा आ रहा है कहीं ना कहीं तो बुक करना होगा। और ये जो जैसे मशीन बोल, मान लो सर्वर ही है, मान लो मेरा ये सर्वर है, मैं हाना का सर्वर बिठा रहा हूँ। मेरा सर्वर बनने में लेट्स से मैंने बोला कि 6 महीने लगेंगे हमें सर्वर सब कुछ रेडी करने में, ताकि रेडी टू यूज़ हो। अब उसमें बहुत सारे खर्चे होंगे मेरे, मेरा एक तो पार्ट्स लाने पड़ेंगे, सर्वर खरीदना पड़ेगा, सर्वर हार्डवेयर सर्वर ओएस खरीदना पड़ेगा,
कंपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, एसी लगवाना पड़ेगा, नेटवर्किंग वाला काम करना पड़ेगा, राइट, इलेक्ट्रिसिटी वाला काम करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद ट्रेनिंग देनी पड़ेगी एम्प्लॉय को कि सर्वर को कैसे मॉनिटर करे, राइट, कब उसको एक्शन लेना है, कब नहीं लेना है, वो सब सेट करना पड़ेगा। तो ये पूरा काम होने मान लो 6 महीने का काम है ये। तो मैंने क्या किया, एक आईओ क्रिएट किया, ठीक है, जो बंदा, अगर मान लो एक ही बंदा रिस्पॉन्सिबल है, वही सारा काम करा रहा है, ठीक है, तो उस बंदे को मैं असाइन करूंगा और साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट को एक बजट दे दूंगा कि सर्वर पे हम लोग लेट्स से 5 लाख खर्च करने वाले हैं, टोटल सर्वर पे 5 लाख खर्च करने वाले, तो आईओ का बजट हो जाएगा 5 लाख, ठीक है। अब उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे हम लोग कि चलो 3 लाख का मेरा सर्वर आएगा, राइट, 50,000 का मेरा एसी वेसी बिठाने में लगेगा, कंपार्टमेंट एसी में मेरा 10,000 का इलेक्ट्रिसिटी और नेटवर्किंग में लगेगा, राइट, उसको बांट लूंगा मैं अलग अलग कितना कितना खर्चा होगा, ट्रेनिंग में लगेगा अलग से 20-50,000 मान लो ट्रेनिंग में लग गया, तो मैंने बांट लिया पूरा। अल्टीमेटली कॉस्ट में आप बुक करते जाओगे हर एक महीने। फिर क्या होगा, एक तरीका है कि मैं बुक करते जाऊँ, सेटल ही ना करूँ, बुक करता जाऊँ और पूरा इसमें 5 लाख 5.5 लाख जो भी है खर्चा कर लूँ, और अल्टीमेटली 6 महीने के बाद जब मेरा सर्वर रेडी हो गया, राइट, तो मैं डायरेक्टली इसको उठा के सर्वर में डाल दूँ, एसेट पे डाल दूँ। दैट इज़ वन वे। मैं डायरेक्टली उठा के, मैं यूज पे जा ही नहीं रहा हूँ, मैं सीधा यहाँ से यहाँ पहुँच जा रहा हूँ सर्वर पे। दैट इज़ वन वे ऑफ डूइंग थिंग्स। आप सीधा यहाँ पहुँच जाओ। इस केस में क्या होगा, आप कॉस्ट इनकर करते चले गए थे 5 महीने तक या फिर 6 महीने तक, कोई रेवेट कोई नहीं था, आपका सिर्फ कॉस्ट इनकर हो रहा था, राइट, कोई एसेट नहीं था, सिर्फ कॉस्ट इनकर हो रहा था, आपका प्रॉफिट कम दिखाया कम दिखाया कम दिखाया। सडनली आप छठे महीने में इसको फिक्स्ड एसेट के रूप में कन्वर्ट कर दिए, सडनली आपकी बैलेंस शीट में ह्यूज चेंज आ गया, राइट, बैलेंस शीट के अंदर बड़ा एसेट आ गया, करंट एसेट आपका, नॉट करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, मतलब फिक्स्ड एसेट में आपने बड़ा सा अमाउंट पोस्ट कर दिया। तो ये थोड़ा सा सस्पिशियस हो जाएगा, राइट, अगर कोई कंपनी को बाहर से देखे कि यार बैलेंस शीट में कुछ था नहीं, सडनली एकदम से इतना बड़ा अमाउंट कहाँ से आ गया, राइट। जैसे हमारे केस में हम सर्वर ले रहे हैं विच इज़ अ स्मॉल अमाउंट 5 लाख। अगर आप मान लो बात करो एरोप्लेन्स की, कि आप कोई एविएशन इंडस्ट्री में हो, एरोप्लेन बना रहे हो, एक एरोप्लेन की कॉस्ट कुछ 10 करोड़ होगी, आपने मान लो कुछ नहीं किया साल भर, सडनली एक दिन आके पूरा एसेट क्रिएट कर दिया, एक ही दिन में आपने वहाँ पे 4 एरोप्लेन खड़े कर दिए, राइट, सीधा 50 करोड़ डाल दिया अमाउंट। तो विच इज़ वियर्ड, राइट, आपका बैलेंस शीट सडनली इतना चेंज हो गया। बट रियलिटी में क्या है कि हर महीने आप एयूसी में डालना चाहिए था आपको, एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन में हर महीने आपको शो करना चाहिए था, चाहे चीज़ें स्मूथ हो। अल्टीमेटली एसेट उतना ही बनेगा, लेकिन हर महीने एयूसी में डालो, फिर एयूसी से एसेट में ले जाओ लास्ट में। तो एयूसी क्या है, ये भी बैलेंस शीट का पार्ट है, एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन भी बैलेंस शीट का पार्ट है। तो आप यहाँ पे दिखाते जाओ हर महीने टू महीने, कॉस्ट को जो है यहाँ से मूव करो, फर्स्ट मंथ आपने यहाँ से कॉस्ट लिया और यहाँ मूव कर लिया, राइट, सेकेंड मंथ जो भी कॉस्ट आया उसको यहाँ से यहाँ मूव किया, थर्ड मंथ जो भी कॉस्ट आया यहाँ से यहाँ मूव किया, फोर्थ मंथ जो भी कॉस्ट आया आपने यहाँ से यहाँ मूव किया, फिफ्थ मंथ जो भी कॉस्ट आया यहाँ से यहाँ मूव किया। कॉस्ट मूव करोगे तो आईओ खाली होता जाएगा, राइट, हर महीने खाली हो जाएगा, हर महीने के एंड में सेटल कर दोगे, अल्टीमेटली सब मिलके जीरो हो जाएगा और कॉस्ट पूरी यहाँ पे आ चुकी है एवरी मंथ। तो फर्स्ट मंथ के एंड पे एयूसी बैलेंस कुछ था, सेकंड मंथ के एंड पे इतना हो गया, थर्ड मंथ के एंड पे इतना, फोर्थ मंथ पे इतना, फिफ्थ मंथ पे इतना। तो हर महीने आप एयूसी दिखा रहे हो रेगुलरली कि हमारा इतना 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 एयूसी हो रहा है। इट इज़ अ मच बेटर वे, राइट, कि आप सडनली चेंज दिखाने के बजाय बैलेंस शीट में रेगुलरली दिखा रहे हो आप। और फिर जब आपका काम कंप्लीट हो गया तो ये पूरा का पूरा उठा के आई एयूसी से एसेट पे डाल दो, एयूसी से उठा के एसेट पे डाल दो पूरा का पूरा। दिस बिकम जीरो, ये जीरो हो जाएगा और पूरा का पूरा एसेट में आ जाएगा। तो बैलेंस शीट में कोई बड़ा चेंज नहीं आया, क्योंकि ऑलरेडी बैलेंस शीट में आपने दिखा रखा था, ये भी आपका बैलेंस शीट का ही पार्ट था एयूसी। और फिर आपने एसेट चेंज किया, राइट, केवल एसेट का क्लास चेंज हो गया, अभी भी बैलेंस शीट के अंदर ही है, केवल एसेट का क्लास चेंज हो गया, एयूसी क्लास से निकल के फिक्स्ड एसेट में आ गया ना। तो चीज़ों को स्मूदन करने के लिए आप एयूसी का यूज़ करते हो, और ये लीगल रिक्वायरमेंट भी है कि आप एयूसी डिक्लेयर करो, दिखाओ, ताकि इन्वेस्टर्स को प्रॉपर आइडिया मिले कि आपका एग्जैक्टली बैलेंस शीट है कैसा। तो आईओ का यूज़ एयूसी प्रोसेस में भी होता है। तो आप यहाँ से यहाँ जाओगे और फिर यहाँ से यहाँ जाओगे, 2 स्टेप में जाओगे rather देन जंपिंग ना, पहले यहाँ से यहाँ जाओगे, इससे बेटर है यहाँ से यहाँ गए और फिर यहाँ से यहाँ गए, 2 स्टेप में। दिस इज योर एयूसी प्रोसेस। तो आईओ का यूज़ इसमें भी होगा, डब्ल्यूबीएस का भी यूज़ हो सकता है इसमें।
WBS कैन ऑल्सो बी यूज इन AUC प्रोसेस। तो जैसे आपने यहाँ IO क्रिएट किया, वैसे ही मान लो कि मैं यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, WBS प्रोजेक्ट, ठीक है। मान लो कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ था, जैसे हमने बोला अभी एरोप्लेन का, राइट। एरोप्लेन बना रहे हो या बस बना रहे हो या कार बना रहे हो या टू व्हीलर बना रहे हो, तो यहाँ बहुत सारे चीज़ें इन्वॉल्व होंगे, राइट। कॉस्ट मल्टीपल होगा। तो WBS आपने बनाया, इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग लोअर लेवल होंगे, उसके अंदर फर्दर लोअर लेवल होंगे। अल्टीमेटली आप कॉस्ट बुक कर रहे हो, अगेन सेम फंडा, WBS को सेटल करोगे, AUC के अंदर कॉस्ट आएगा, राइट। WBS को सेटल करोगे और AUC के अंदर कॉस्ट आ जाएगा। एवरी मंथ यू विल बी सेटलिंग इट, सेटल करोगे AUC के अंदर, और फिर AUC से निकाल के उसको फिक्स्ड एसेट में ले जाओगे लास्ट में, जब सब कुछ हो गया, राइट। बोले देंगे यहाँ पे IO में बुक कर रहे थे, वहाँ पे WBS में बुक करोगे। यहाँ पे सिंगल पर्सन रिस्पॉन्सिबल था, यहाँ मल्टीपल पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, राइट। और एवरी मंथ आप उसको सेटल कर सकते हो। तो दैट इज योर WBS एज ए AUC प्रोसेस। ये मेरा AUC प्रोसेस है अंडर कंस्ट्रक्शन। राकेश, यस, हाउ टू टेक द वैल्यूज फ्रॉम AUC टू फिक्स्ड एसेट? सेटलमेंट होता है। नहीं, पहले मान लो मैंने AUC का सेटलमेंट करा, देन एक और सेटलमेंट होगा AUC टू फिक्स्ड एसेट। पहले आपने IO सेटल किया, ठीक है, राइट। IO सेटल किया तो AUC में बैलेंस आ गया, ठीक है। फिर आप AUC का सेटलमेंट करोगे, इट गोज टू फिक्स्ड एसेट। ओके, मतलब 2 बार सेटल करना पड़ेगा ना? यस यस। ओके। पहले हम यहाँ से यहाँ लाएंगे, यहाँ पे स्टोर करते जाएंगे। जब मेरा काम हो जाएगा, जब मेरा पूरा काम खत्म हो गया, एसेट इज रेडी, तो ये क्या हो रहा है, एवरी मंथ हो रहा है, यहाँ से यहाँ से एवरी मंथ। लेकिन ये वाला काम वंस इन ए मंथ, मतलब वंस एट द एंड हो रहा है। ये वाला काम लास्ट में एक बार कर रहे हैं हम लोग। ओके, मतलब जब फिक्स्ड एसेट हमारा रेडी हो गया, मान लो कोई सेटअप यस है वो हमारा रेडी हो गया है ना? यस, जब आप बोलते हो कैपिटलाइजेशन, राइट, पुट टू यूज, आपका ओके, एसेट रेडी हो गया, आप कैपिटलाइज करना चाहते हो, तो ये ठीक। ट्रांजेक्शन करोगे आप AUC टू फाइनल एसेट। इसको ओके, बोलते हैं कैपिटलाइज करना, राइट, एसेट कैपिटलाइज करना। ओके, अब ओके। ऐसा भी हो सकता है कि जब आप एसेट कैपिटलाइज कर रहे हो, AUC में सारे कॉस्ट स्टोर कर लिया आपने। जैसे मैंने बोला कि हम सर्वर बिठा रहे थे, तो हमने उसमें सारे कॉस्ट डाल दिए, हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, इलेक्ट्रिसिटी का, नेटवर्किंग का, सब डाल दिया, राइट, कंपोनेंट AC। उसमें ट्रेनिंग का भी कॉस्ट डाल दिया। लेकिन मुझे पता है कि ट्रेनिंग का जो है, इट शुड नॉट बी कैपिटलाइज्ड। ट्रेनिंग क्या है, हमने अपने बंदे को ट्रेन किया है, उसको हम एसेट पे नहीं डाल सकते। इट्स अ नॉलेज ही गेन्ड, राइट। वो मेरे सर्वर का कॉस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करूँगा, उस कॉस्ट को मैं एक्सपेंस आउट कर दूंगा, उस कॉस्ट को मैं एक्सपेंस आउट कर दूंगा। ये उसी का कॉस्ट जो पड़ा हुआ है, उसको मैं एसेट पे डालने के बजाय एक्सपेंस आउट करूंगा, विच मीन्स किसी कॉस्ट सेंटर में डाल दूंगा। लेट्स से ट्रेनिंग कॉस्ट सेंटर, यहाँ पे डाल दिया, एक्सपेंस आउट कर दिया। पॉइंट क्लियर नहीं हुआ राकेश, ये थोड़ा सा। आता हूँ अभी फिर से, ठीक है। अब देखो, मैंने बोला कि AUC में स्टोर कर लिया और लास्ट में फिक्स एसेट पे डाल दिया, ठीक है। अब AUC में कॉस्ट क्या क्या पड़ी हुई है, मैं सर्वर का एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। AUC में मेरी बहुत सारी कॉस्ट पड़ी हुई है। मेरे हार्डवेयर का कॉस्ट है, ठीक है, हार्डवेयर है, हार्डवेयर। मेरे सॉफ्टवेयर का कॉस्ट है, क्योंकि अकेले हार्डवेयर तो काम करेगा नहीं, मुझे OS का सॉफ्टवेयर भी लेना पड़ेगा, सर्वर OS। मुझे AC बिठानी पड़ेगी, कंपार्टमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, लेट्स से फर्नीचर एंड AC, ये भी करना पड़ेगा, कंडीशनिंग। मुझे नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, सारे कंप्यूटर्स को सर्वर से जोड़ने पड़ेंगे, राइट, और लैन वैन बिछाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी का काम देखना पड़ेगा। साथ ही साथ मुझे अपने बंदे को ट्रेनिंग भी तो देनी है कि वो कैसे सर्वर मॉनिटर कैसे करे, राइट। या ट्रेनिंग बोलो या फिर अलग से एक बंदा रखूंगा जो सर्वर मॉनिटर करे, राइट, क्योंकि सर्वर 5 लाख का है, उसकी सैलरी 10,000 है। तो किसी बंदे को रखूंगा कि सर्वर को मॉनिटर करे, खराब ना हो, राइट, कब उसको क्या ठीक करना है, कब क्या खराब होने वाला देखे वो। या फिर मैं बोलूँ कि ट्रेनिंग, मैंने एक बंदे को ट्रेन कर लिया, अपने इंटरनल बंदे को, कि वो सर्वर जो है देखेगा। ट्रेनिंग, अब देखो हर चीज़ में मैंने खर्चा किया। मान लो हार्डवेयर में मैंने 3 लाख खर्च किए, सॉफ्टवेयर में मैंने 50,000 खर्च किए, यहाँ मैंने AC बिठाने में 50,000 खर्च किया, वर्किंग पे मैंने 10,000 खर्च किया, इलेक्ट्रिसिटी पे मैंने 2,000, तो छोटा लग रहा है, चलो 5,000 खर्च किया, ट्रेनिंग पे मैंने 25,000 खर्च किया, ठीक है। मान लो इतने इतने खर्च किए और ये मेरा सर्वर रेडी है 6 महीने के बाद। मेरा टोटल कॉस्ट आ रहा है 44,000 में मेरा काम हो गया,
ठीक है, 6000 विद इन बजट। तो 44,000 मेरा काम हुआ। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या मैं पूरा का पूरा 44,000 उठा के यहाँ सेटल कर दूँ इस असेट पे, कि मेरा असेट का वैल्यू जो बना है सर वो 44,000 का है, बट इट इज़ क्वेश्चनेबल। ये 44,000 का नहीं है, ये एक्चुअली इतने का ही है, 41,500 का ही है। अरे 40 बोल रहा हूँ, 4 लाख है, सॉरी, 4,40,000 है ये, 4,40,000। तो मैं 4,40,000 को यहाँ पे डाल दूँ पूरा का पूरा, बट इट इज़ नॉट ट्रू राइट। मेरे जो फिक्स्ड एसेट बना है, मेरा जो सर्वर बना है, उसका रियल कॉस्ट ये है 4,15,000, बराबर है, 4,15,000, 4,15,000 का मेरा सर्वर होगा, और ये 25,000 ये ट्रेनिंग पे खर्च हुआ है। तो मुझे पता है कि ये इस पे नहीं जाना चाहिए, मेरे फिक्स्ड एसेट पे नहीं जाना चाहिए, ट्रेनिंग पे खर्च किया मैंने। तो इसको मैं क्या करूँगा, ट्रेनिंग कॉस्ट सेंटर पे डाल दूंगा। ये कॉस्ट सेंटर है, ट्रेनिंग कॉस्ट सेंटर पे डाल दूंगा इसको। तो इतना थोड़ा अमाउंट, सेटलमेंट के पार्ट नहीं बनाना है इसको, ट्रेनिंग वाले को ये बनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा इसमें इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है फिक्स्ड एसेट को बनाने के लिए, राइट? करेक्ट, लेकिन खर्चे करते वक्त तो मैंने लिया था, बिकॉज दैट वाज पार्ट ऑफ माय प्रोजेक्ट। ओके। तो मैंने एयूसी के टाइम पर डाल रखा था। अब मुझे यहाँ से डिसाइड करना है कितना एसेट पे जाना चाहिए और कितना इस पे जाना चाहिए। तो अब मैं इसको जितना एसेट पे जाना चाहिए उतना एसेट पे डाल रहा हूँ, और जितना मुझे एक्सपेंस आउट करना चाहिए मैं उसको एक्सपेंस आउट कर रहा हूँ, मतलब किसी कॉस्ट सेंटर पे डाला। तो सर्टेन अमाउंट यहाँ पे डाल दिया, सर्टेन अमाउंट कॉस्ट सेंटर पे डाल दिया। कॉस्ट सेंटर पे डाला मतलब एक्सपेंस आउट कर दिया कि मेरा खर्च हो गया, और ये मेरे एसेट पे चला गया। तो एयूसी बिकम जीरो, कुछ पार्ट एसेट बन गया, कुछ पार्ट एक्सपेंस आउट हो गया। तो ये सेटलमेंट रूल के अंदर आएगा कि सब सेटलमेंट रूल मेंटेन करोगे, एयूसी का रिसीवर कौन है, रिसीवर दिस। तो यहाँ पे क्या होता है, लाइन आइटम सेटलमेंट होता है। तो मेरे पास कितने लाइन आइटम्स हैं, मेरे पास नहीं सॉरी नॉट 12, 1 2 3 4 5 6 लाइन आइटम्स है। ठीक है, ये 6 लाइन आइटम्स है। लाइन आइटम सेटलमेंट का मतलब यही है कि आप इंडिविजुअल लाइंस को सेटल करो। तो मैं जब इसको सेटल करूंगा, सॉरी, मैं जब इसको सेटल करूंगा तो मैं डाल दूंगा फिक्स्ड एसेट पे, जब इसको सेटल करूंगा डाल दूंगा फिक्स्ड एसेट पे, इसको सेटल करूंगा फिक्स्ड एसेट पे, जब इसको सेटल करने की बारी आएगी तो मैं कॉस्ट सेंटर पे डाल दूंगा। दैट इज द फंडा ऑफ लाइन आइटम सेटलमेंट, राइट। एक होता है समरी सेटलमेंट। समरी सेटलमेंट का मतलब है लमसम टोटल। समरी सेटलमेंट में क्या होगा, इन पूरे को एक साथ आप सेटल करोगे, पूरा 4,40,000 एक साथ सेटल होगा, और आप यहाँ बांट दो कि चलो 90% यहाँ दे दो, 10% यहाँ दे दो। दैट इज समरी सेटलमेंट। 90% यहाँ, 10% यहाँ। हाँ, तो इसमें क्या होगा, सिस्टम पूरा पकड़ेगा 4,40,000, उसका 90% एसेट पे डाल देगा, 10% इस पे डाल देगा। दैट इज समरी सेटलमेंट। और अगर आपको लाइन आइटम सेटलमेंट चाहिए तो इंडिविजुअल लाइन की सेटलमेंट करोगे आप। इस लाइन का सेटलमेंट रूल बनाओगे तो फिक्स एसेट दे दोगे, इसका फिक्स एसेट, सिमिलरली इन सब के लिए फिक्स एसेट करोगे। जब लास्ट वाले को सेटल करने की बारी आएगी तो कॉस्ट सेंटर पे डाल दो। दैट इज लाइन आइटम सेटलमेंट। तो आपको याद होगा, हम लोग जब एयूसी क्लास क्रिएट करते हैं तो वहाँ ऑप्शन आता है राइट, समरी सेटलमेंट करना है कि लाइन आइटम सेटलमेंट करना है। एक पॉइंट है, ये कॉस्ट सेंटर पे हम इसको कैसे एक्सपेंस आउट करेंगे, मतलब कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग के थ्रू या फिर कुछ और? नहीं, सेटलमेंट, एयूसी सेटलमेंट। ईयूसी टू कॉस्ट सेंटर। हाँ हाँ, ओके। आप जब एयूसी सेटलमेंट रन करोगे तो सिस्टम विल पोस्ट एंट्री लाइक दिस, क्रेडिट। देखो लेट्स से मेरे पास मान लो मैं समरी सेटलमेंट दिखा रहा हूँ, ठीक है, सबका एक साथ कर रहा हूँ 90% 10% काइंड ऑफ, और यहाँ पे टोटल कॉस्ट है मेरा 4,40,000 राइट। उसका 90% कितना आता है, विल सी, क्रेडिट एयूसी, यहाँ से निकल रहा है कितना अमाउंट निकल रहा है, दैट इज 0.9, यार इक्वल टू नहीं लिख पा रहा हूँ, इक्वल टू 0.9 मल्टीप्लाइड बाई 4,40,000 रहा है, ठीक है। डेबिट कहाँ जा रहा है, एयूसी पे जा रहा है, सॉरी नॉट एयूसी, फिक्स्ड एसेट पे जा रहा है। यही अमाउंट फिक्स्ड एसेट पे जा रहा है। एक तो ये लाइन बनेगी, और दूसरा बनेगा क्रेडिट एयूसी, जो कि बेसिकली 10% है, 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 4,40,000। ज़्यादा हो गया क्या, दोनों मिला के उतना आना चाहिए, ठीक है। और ये डेबिट जाएगा आपको, डेबिट में क्या आएगा, यहाँ पे कुछ अमाउंट, कुछ अकाउंट आएगा अल्टीमेटली,
अमाउंट वही रहेगा, और ये जा रहा है आपका किस पे, कॉस्ट सेंटर पे, कॉस्ट सेंटर पे। इस तरह की पोस्टिंग होगी आपकी। कॉस्ट सेंटर तो क्रेडिट होगा ना? डेबिट होगा ना, या क्रेडिट क्यों होगा? हम कॉस्ट सेंटर पे डाल रहे हैं ना, एक्सपेंस आउट कर रहे हैं ना। निकल रहा है एयूसी से, एयूसी इज क्रेडिटेड, निकल एयूसी से रहा है। टोटल एयूसी से कितना निकला आपका? टोटल एयूसी से आपका 4,40,000 निकला, जिसमें से इतना अमाउंट गया फिक्स्ड एसेट पे और इतना अमाउंट गया कॉस्ट सेंटर पे। तो कॉस्ट सेंटर हियर, द कॉस्ट सेंटर इज रिसीवर। हाँ, कॉस्ट सेंटर को मिल रहा है ना, तभी तो बोल रहा है एक्सपेंस आउट, कॉस्ट सेंटर में डाल दिया, मेरा खर्चा हो गया ना ये। ट्रेनिंग एक्सपेंस पे डाला है मैंने ना, ट्रेनिंग एक्सपेंस, मेरा खर्चा किस पे हुआ है? ट्रेनिंग पे खर्चा हुआ है, तो यहाँ पे डेबिट ट्रेनिंग एक्सपेंस और कॉस्ट सेंटर आ जाएगा। ओके। ये ट्रेनिंग एक्सपेंस है पूरा ना, तो ये डॉक्यूमेंट बनने वाला है आपका, अगर आप समरी सेटलमेंट करते हो 90%, 10%। लाइन आइटम करोगे तो इंडिविजुअल लाइन आइटम का बनेगा, इसके लिए अलग डॉक्यूमेंट, इसके लिए अलग डॉक्यूमेंट। अल्टीमेटली फर्स्ट वाले में ये 2 लाइन बनेगी, जहाँ पे ये अमाउंट होगा 33 lakhs का, सेकंड में 5 लाख का अमाउंट होगा, राइट। इस तरह करते करते लास्ट में बॉटम वाली लाइन बनेगी ये वाली, जिसका अमाउंट होगा 25,000। ठीक है ना? यस अभी यस क्लियर है ना कि यस यस। डॉक्यूमेंट क्या बनेगा? ठीक है। और ये चाहिए भी था हमें, राइट, ट्रेनिंग एक्सपेंस में हमारा 44,000 बुक हो जाए। मैं इसको मिड ड्रॉप कर दे रहा हूँ, या छोड़ो, जाने दो, करते हैं। तो ये था हमारा एयूसी प्रोसेस। अब इसी में एक और चीज़ आता है कि जैसे हमने अभी ये एयूसी प्रोसेस देखा, तो ये था हमारा IOS AUC, ये था हमारा WBS SAUC। देयर इज वन मोर थिंग कॉल्ड, मैं किधर लिखूँ, यहाँ लिखता हूँ पहले। दिस पार्ट वाज, ठीक है, ये था IOS AUC, IO या फिर IO इन AUC। और सिमिलरली वैसे ये था WBS इन AUC प्रोसेस, बिल्कुल सेम फैशन में। ये ज़्यादा क्लियर होगा जब हम लोग एक्चुअल करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ समझ रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ आने वाली है सामने, तो ये सब एक्सपेक्टेड है जो आगे आएगा। हाँ, एक और चीज़ की आईओ में जब हम लोग आएंगे मास्टर डेटा में, तो वहाँ पे एक और चीज़ होता है स्टेटस करके, राइट। एक होता है सिस्टम स्टेटस और एक होता है यूजर स्टेटस ना, सिस्टम स्टेटस एंड यूजर स्टेटस। किसी ने सुना है यूजर स्टेटस? अगर आप लोगों ने काम किया होगा आईओ और डब्ल्यूबीएस के साथ तो सुना ही होगा। किसी ने सुना है? आईओ क्रिएट तो करता हूँ बट यूजर स्टेटस नहीं देखा है, क्योंकि मैं स्टैटिस्टिकल ही क्रिएट करता हूँ। अच्छा, ओके। तो बेसिकली स्टेटस पे आएंगे हम लोग बाद में, मास्टर डेटा के अंदर होता है। WBS में तो देखा है CRTD करके कुछ आता है, जिसमें बजट रिलीज, पार्सली रिलीज करके कुछ आता है। पास CRTD होता है शायद रिलीज का, ऐसी कुछ इंटरनल ऑर्डर का बेसिकली स्टेटस। स्टेटस जो है, अगर मैं लिखूं यहाँ पे कि स्टेटस कौन कौन से होते हैं, स्टेटस दोनों का सेम ही होता है बेसिकली, आईओ या डब्ल्यूबीएस हो। तो पहले होता है क्रिएटेड, आप जब क्रिएट करते हो, जब आप डब्ल्यूबीएस या फिर आईओ बनाओगे तो क्रिएटेड स्टेटस में आएगा। क्रिएटेड का मतलब है कि आपने सिर्फ क्रिएट किया है, अभी ट्रांजेक्शन्स अलाउड नहीं है, स्टेटस क्रिएटेड। उसके बाद आता है स्टेटस रिलीज्ड, आपको उसको रिलीज करना पड़ता है। रिलीज करने का मतलब है कि इट इज रेडी फॉर पोस्टिंग, रेडी फॉर ट्रांजेक्शन्स, राइट। तो स्टेटस बेसिकली कंट्रोल करता है कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स अलाउड है ना, स्टेटस कंट्रोल करता है क्या ट्रांजेक्शन अलाउड है। ऐसा कई बार होता है कि बिजनेस जो है डब्ल्यूबीएस में बुकिंग करना चाह रहा है, पर वो कर नहीं पा रहा है, सिस्टम उसको अलाउ नहीं कर रहा है, सिस्टम उसको एरर दे रहा है, ट्रांजेक्शन नॉट अलाउड, राइट। तो बेसिकली वो स्टेटस से लिंक है कि वो बुकिंग क्यों नहीं कर पा रहा है, बिकॉज ऑब्जेक्ट का स्टेटस ऐसा है कि वो अलाउ नहीं कर रहा है। उसके बाद आता है एक आपका सेटलमेंट रूल क्रिएटेड करके,
ये भी एक स्टेटस आता है कि आपने सेटलमेंट रूल मेंटेन कर दिया ऑब्जेक्ट के लिए। फिर एक स्टेटस आता है टेको करके, टेको मतलब टेक्निकली कंप्लीट। टेक्निकली कंप्लीट का मतलब है कि आप सिस्टम को बता रहे हो कि हमें जो भी बुकिंग करनी थी हो गई है, राइट, हमारी बुकिंग कंप्लीट हो चुकी है, दैट इज टेक्निकली कंप्लीट। मतलब इट इज सर जो रिलीज स्टेटस है ये बजट रिलीज है कि मतलब अप्रूव नहीं नहीं आईओ स्टेटस? रिलीज, नहीं बजट नहीं, आईओ रिलीज। ओके, एंड सर एक अप्रूव करके भी आता है ना स्टेटस? अप्रूव करके स्टेटस बजट में आता है, वो जब हम बजट की बात करेंगे तब आएगा। बजट को आपको रिलीज कर सकते हो डब्ल्यूबीएस के केस में, आईओ में नहीं होता, डब्ल्यूबीएस के केस में होता है। बजट को रिलीज करना होता है या बजट को अप्रूव करना होता है। हाँ सर। आईओ में नहीं होता, डब्ल्यूबीएस में होता है, वो एक वही डिफरेंस है एक्चुअली। बजट को आप स्टेज वाइज अप्रूवल देते हो। चलो इसको अलग कर लेता हूँ जो बेटर रहेगा। इसको सिर्फ डब्ल्यूबीएस लिखता हूँ और इसको इधर लिखता हूँ डब्ल्यूबीएस में। तो ये सब तो रहेगा ही। यहाँ पे फिर आता है आपका क्लोज्ड। आप जब डब्ल्यूबीएस को क्लोज कर दोगे तो इट बिकम्स इनएक्टिव, खत्म हो गया, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी आएगा क्लोज्ड। अब देखो ये स्टेटस सिस्टम स्टेटस है, ये सब क्या है, सिस्टम स्टेटस, मतलब सिस्टम द्वारा दिए गए स्टेटस है। ऑलरेडी सिस्टम में ऑलरेडी प्रेजेंट है, ऐसे भी नहीं दे रखे हैं। क्रिएटेड, आपने क्रिएट किया है। रिलीज्ड मतलब आईओ इज रिलीज्ड फॉर पोस्टिंग, आप उसमें पोस्टिंग अलाउ कर सकते हो। सेटलमेंट रूल क्रिएट कर सकते हो, तो सेटलमेंट रूल क्रिएटेड, जब आप क्रिएट कर दोगे तो रूल क्रिएटेड करके स्टेटस चेंज हो जाएगा। आप टेक्निकली कंप्लीट कर सकते हो एंड आप उसको क्लोज कर सकते हो। वो सारे काम यहाँ पे भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज भी आती है, लेट्स से जो अभी किसी ने बोला अप्रूवल का, तो बजट अप्रूव्ड भी होता है। वो एक्चुअली स्टेटस में दिखेगा, हाँ दिखेगा, आई थिंक बजट अप्रूव भी दिखेगा कि बजट अप्रूव है कि नहीं है। एक होता है अवेलेबिलिटी कंट्रोल एक्टिवेट करना, तो वो भी स्टेटस में आता है। अवेलेबिलिटी कंट्रोल दोनों जगह आएगा, इधर भी और इधर भी। तो लेट्स से मैं इसको नीचे लाता हूँ। अवेलेबिलिटी कंट्रोल एक्टिवेटेड मतलब सिस्टम बजट चेक करे। ये दो अलग अलग चीजें हैं। बजट मेंटेन करना इज सेपरेट, अवेलेबिलिटी कंट्रोल एक्टिवेट करना इज सेपरेट। ठीक है ना। अगर आपने बजट मेंटेन कर दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अवेलेबिलिटी कंट्रोल भी एक्टिवेट हो गया। मतलब सिस्टम कंपेयर करना स्टार्ट कर दे एक्चुअल को बजट से, और जब वो आप एक्सीड करो तो आपको रोके वो, राइट, वार्निंग दे, हार्ड एरर दे दे, उसको बोलते हैं अवेलेबिलिटी कंट्रोल। सिस्टम कंपेयर करे बजट एंड एक्चुअल और देखे कितना अमाउंट अवेलेबल है। मान लो आपने कंपेयर, सिस्टम ने कंपेयर किया और अवेलेबल अमाउंट केवल 1 लाख है और आप जो पोस्टिंग कर रहे हो वो 1.5 लाख की है, तो सिस्टम आपको स्टॉप कर देना चाहिए, राइट। तो इसको बोलते हैं अवेलेबिलिटी कंट्रोल। बजट तो डाला ही डाला है, साथ ही साथ कंट्रोल भी एक्टिवेट होना चाहिए। ऐसा एक बार होता है जब आपका नया नया प्रोजेक्ट हो रहा हो, ऐसा होता है कि बिजनेस ने बजट मेंटेन कर दिया, बाद में वो पोस्टिंग कर रहा है और बोल रहा है कि बजट काम नहीं कर रहा है, राइट। उसने पोस्टिंग की और सिस्टम अलाउ कर दिया, उसको पता है उसने बहुत ज़्यादा पोस्टिंग कर दी है, लेकिन सिस्टम अलाउ कर दिया, टेस्टिंग फेल हो गई। तो आप जाके देखोगे तो बजट भी मेंटेन्ड है, फिर क्यों फेल हो गया? रीजन बीइंग अवेलेबिलिटी कंट्रोल एक्टिवेटेड नहीं था। तो अवेलेबिलिटी कंट्रोल भी एक्टिवेट करना पड़ता है। इसको नीचे ले लेता हूँ मैं थोड़ा, ये इधर भी आएगा अवेलेबिलिटी कंट्रोल। मोस्ट ऑफ द केस में ऑटो एक्टिवेट हो जाता है, बट कभी कभी नहीं भी होता है तो हमें मैनुअली करना पड़ता है फिर। ये सब अलग अलग स्टेटस है, ये सब सिस्टम स्टेटस है, मतलब एसएपी द्वारा क्रिएटेड स्टेटस है बाय सिस्टम। एंड स्टेटस करता क्या है, कंट्रोल करता है क्या अलाउड है क्या नॉट अलाउड है। जैसे क्रिएटेड स्टेटस में बजट मेंटेन करना अलाउड है, क्रिएटेड स्टेटस में बजट मेंटेन कर सकते हो, लेकिन एफआई ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकते, पोस्टिंग नहीं कर सकते, पोस्टिंग करने के लिए रिलीज करना पड़ेगा, राइट। सिमिलरली इधर भी है, क्रिएटेड स्टेटस में आप बजट मेंटेन कर सकते हो लेकिन ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकते, ट्रांजेक्शन्स के लिए उसको रिलीज करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आएंगी। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पे हमें थोड़ा देखना पड़ेगा जब हम आगे बढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड यूजर स्टेटस। तो पहला स्टेप होगा कि आपको ये समझना पड़ेगा सिस्टम स्टेटस कैसे काम करता है, बाद में आओगे आप यूजर स्टेटस क्या होता है, राइट। तो दोनों जगह सेम तरीके से बिहेव करता है। यूजर स्टेटस का मतलब है, अगेन स्टेटस करता क्या है, ट्रांजेक्शन्स को कंट्रोल करता है।
मान लो कि रिलीज करने पे आपके मैं बोलता हूँ ट्रांजेक्शन्स बहुत सारे आपके पास, ट्रांजेक्शन 1, ट्रांजेक्शन 2, ट्रांजेक्शन 3, ट्रांजेक्शन 4, ट्रांजेक्शन करते करते इस तरह से करते करते ट्रांजेक्शन 50 ट्रांजेक्शन्स है आपके पास, और वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स अलाउड हैं रिलीज करने पे। रिलीज करने पे ये 50 ट्रांजेक्शन्स अलाउ हो जा रहे हैं, ठीक है। पर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं है, आप चाहते हो नहीं यार रिलीज करने पे सिर्फ T1 से लेके T10 तक अलाउड हो, ठीक है ना। मैं क्या चाहता हूँ, T1 से लेके T10 तक अलाउ करूँ मैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट सिस्टम क्या कर रहा है, रिलीज करने पे ये सारे अलाउ कर दे रहा है। मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि जब मैं रिलीज कर दूं तो सिस्टम T1 से T10 तक अलाउ करे, उसके बाद मैं कुछ और करूं कि सिस्टम T11 से लेके T40 तक अलाउ करे, मैं कुछ और करूं कि सिस्टम मुझे T41 से लेके ट्रांजेक्शन 50 तक अलाउ करे। टी का मतलब ट्रांजेक्शन दिखा रहा हूँ मैं, इट कैन बी एनी टी कोड, ठीक है ना। कोई भी टी कोड है, चाहे वो सेटलमेंट है, चाहे वो कॉस्ट बुकिंग है, चाहे वो कुछ और है, ये कोई ट्रांजेक्शन है, अलग अलग टी कोड्स हैं, तो रिलीज करने पे ये सारे अलाउ हो जा रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि मैं इसको फर्दर स्प्लिट कर दूं, कि भले ही वो रिलीज स्टेटस में है, भले ही मेरा सिस्टम स्टेटस रिलीज्ड है, लेकिन मेरा यूजर स्टेटस क्या करूंगा मैं, 3 बना दूंगा, यूजर स्टेटस 1, यूजर स्टेटस 2, यूजर स्टेटस 3। और यूजर स्टेटस 1 पे मैंने ये सेट कर दिया कि इतने अलाउड हो, यूजर स्टेटस 2 पे मैंने ये सेट कर दिया, यूजर स्टेटस 3 पे मैंने ये सेट कर दिया। अब क्या यूजर होगा, स्टेटस मींस यूजर आईडी और समथिंग अदर, नहीं, यूजर स्टेटस का मतलब यूजर स्टेटस, कि ये हमने यूजर मतलब बिजनेस ने अपने पर्पस के लिए क्रिएट किया, ये ओके सिस्टम स्टेटस है, मतलब बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम में है, आपने क्रिएट नहीं किया है, बाय डिफॉल्ट एसएपी ने आपको दे दिया स्टेटस ना। ये स्टेटस पहले से नहीं रहेंगे, ये आपने कस्टम क्रिएट किया है स्टेटस ना, ये स्टेटस हमने क्रिएट किया है, बिकॉज मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि रिलीज करने के बाद जो 50 ट्रांजेक्शन्स अलाउ हो जा रहे हैं, मैं चाहता हूँ ऐसा ना हो। मैं चाहता हूँ कि मैं अभी भी चीज़ों को कंट्रोल करूँ, उसके अंदर भी मैं उसको 3 स्टेप में करूँ, ठीक है। यूजर स्टेटस 1 पे सिर्फ ये 10 ट्रांजेक्शन हो, यूजर स्टेटस 2 पे ये 40 ट्रांजेक्शन हो, और यूजर स्टेटस 3 पे अगेन ये 10 ट्रांजेक्शन हो, और या ये 30 T1 था, टू ये 30 और ये 10। T1 टू T10 ये ट्रांजैक्शन पोस्टिंग्स की है या फिर ट्रांजैक्शन कोड है ये? ट्रांजेक्शन कोड, कोई भी ट्रांजेक्शन, जैसे T1 का मतलब समझ लो कॉस्ट बुकिंग हो गया, FI ट्रांजेक्शन हो ओके गया, T2 का मतलब मान लो सेटलमेंट हो गया, T3 का मतलब मान लो बजटिंग हो गया, T4 का मतलब लेट्स से रिवर्सल हो गया ना, अलग अलग ट्रांजेक्शन्स। ओके तो ओके स्टेटस क्या करता है, ट्रांजेक्शन कंट्रोल करता है। ओके अगर मैं ये काम नहीं करता हूँ अगर मैं ये काम नहीं करता हूँ, ठीक है, तो अभी क्या होगा, आपने कोई WBS था या फिर कोई IO था, आपने उसको रिलीज कर दिया, रिलीज करने पे क्या होगा, ये सारे अलाउड हो गए, ओके बराबर है। यूजर क्या करेगा, यूजर इनमें से कोई भी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कर सकता है, ये 50 में से कोई भी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कर सकता है फॉर दिस ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये सारे अलाउड है। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। करेक्ट मैं चाहता हूँ कि उसको मैं स्टेप वाइज करूँ, कि मैं कंट्रोल कर सकूँ कि वो पहले सिर्फ ये 10 ट्रांजेक्शन ही कर सके, और फिर मैं उसको अलाउ करूँ कि अगले 30 ट्रांजेक्शन कर पाओ, फिर मैं उसको अलाउ करूँ कि अगले 10 ट्रांजेक्शन और कर पाओ। तो उस सिनेरियो के लिए मैं यूजर स्टेटस क्रिएट कर दूंगा। मैंने यूजर स्टेटस 1 बनाया जिसमें मैंने सिर्फ 10 ट्रांजेक्शन की परमिशन दी, यूजर स्टेटस 2 बनाया जिसमें अगेन 30 ट्रांजेक्शन की परमिशन दी, और 3 बनाया जिसमें 10। तो अगर मान लो सिस्टम स्टेटस रिलीज्ड है और यूजर स्टेटस US1 सेट है ना, सिस्टम स्टेटस रिलीज्ड है और यूजर स्टेटस US1 है, इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ ये 10 ट्रांजेक्शन अलाउड है। ओके अगर सिस्टम स्टेटस रिलीज्ड है और यूजर स्टेटस 2 है, इसका मतलब ये 30 ट्रांजेक्शन अलाउड है। मतलब T11 से लेके T40 तक यूज कर सकता है ट्रांजैक्शन को, जो भी अंडर में हाँ, आएंगे। जब वो यूजर स्टेटस 2 है, ऑब्जेक्ट के अंदर यूजर स्टेटस होगा, राइट। तो मेरा IO का दोनों स्टेटस होगा, सिस्टम भी होगा, यूजर भी होगा। सिस्टम स्टेटस रिलीज्ड है, यूजर स्टेटस 3 है, तो वो बेसिकली ये सारे ट्रांजेक्शंस कर सकता है 10 ऑब्जेक्ट ट्रांजैक्शन में। यूज कर सकता हाँ, है, जो भी 41 बराबर है, और 50 के अंडर में आएंगे, राइट। यस।
तो बेसिकली इस ऑब्जेक्ट के साथ ये ट्रांजेक्शन्स अलाउड है फॉर दिस सिस्टम स्टेटस एंड दिस यूजर स्टेटस, ये 10 ट्रांजेक्शन्स अलाउड है। कुछ क्लैरिटी हुआ या कंफ्यूजन हो गया पूरा? बोलो भाई, बाकी लोग भी बोलो। कुछ डाउट है यहाँ पे कि सिस्टम स्टेटस और यूजर स्टेटस में क्या फर्क है? यूजर ये स्टेटस तो हम क्रिएट करते हैं, ठीक है ना? ये तो ठीक है, आप उसको क्लासिफाई कर दिया हमने, लेकिन इसका पर्पस क्या होता है क्लासिफाई करने का? भाई मैंने बोला ना, कंट्रोल करने को। आपने हाँ, यहाँ पे सिस्टम ने क्या दिया है, सिस्टम ने 50 ट्रांजेक्शन्स को अलाउ कर दिया, राइट। राइट? आप नहीं चाहते कि सारे के सारे एक साथ अलाउड हो जाए। आप चाहते हो कि नहीं, इनमें से लेट्स से केवल ये 10 ट्रांजेक्शन फर्स्ट, लेट्स से, या फिर चलो इस तरह से देखो, दो ही मैं रखता हूँ, लेट्स सपोज दो ही रखता हूँ 40 तक, और ये 41 से लेके 50 तक। मान लो कि ड्यूरिंग योर इंटायर मंथ आप चाहते हो कि 40 ट्रांजेक्शन्स अलाउड हो, तो आपने ये 40 ट्रांजेक्शन्स को अलाउ कर दिया यूजर स्टेटस 1 से। फिर आप चाहते हो कि जब मंथ एंड आए उसी समय मैं केवल ये अलाउ करूंगा, ये 10 ट्रांजेक्शन केवल मंथ एंड में अलाउ होने चाहिए, एंड ऑफ द मंथ, राइट? तो वो ओके। सिस्टम स्टेटस नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे सब कुछ अलाउड है, सारा अलाउड है, लेकिन यहाँ से मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ। इट इज़ लाइक एडिशनल कंट्रोल। आपने उस रिलीज को फर्दर बांट दिया, सिस्टम ने इतना दिया था आपको पूरा का पूरा, आपने इसको 2 पार्ट में बांट दिया, इसमें और इसमें। करेक्ट करेक्ट। जब हम लोग करेंगे सिस्टम में तो आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया आएगा तो कि ज़्यादा और कैसे। क्लियरिटी होगी। अभी लेकिन कंसेप्चुअली समझ लो, बाद में सिस्टम में यस देखेंगे। यस यस, करेक्ट करेक्ट। राइट? तो आप उन्हीं सबको आप स्प्लिट कर पा रहे हो, मोर मतलब ज़्यादा कंट्रोल ले पा रहे हो आप बेसिकली। तो ये आएगा। हाँ, मैं जो बताना चाह रहा था वो कुछ और था, मैं कहीं और चला गया। एंड लेट मी पुट इट इन अ बॉक्स स्टेटस। देखो, हमने ये दिखा था कि IO इन AUC प्रोसेस। नाउ एक और होता है आपका, दैट इज कॉल्ड IOSIM, इन्वेस्टमेंट मेजर। IM का मतलब है इन्वेस्टमेंट मेजर, ठीक है? इसमें क्या होता है कि फंडा सेम है। पहले आप कॉस्ट, लेट मी टेक दिस एंटायर थिंग। ठीक है, कॉस्ट पहले IO में बुक होगी, यहाँ पे बजट वेट आपने मेंटेन कर रखा होगा, अल्टीमेटली सेटल होके AUC में जाना है, ठीक है? लेकिन इस केस में AUC आप क्रिएट नहीं करोगे, इट विल बी ऑटो क्रिएटेड, ठीक है ना? जब IO का सेटलमेंट होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ AUC में ही जाएगा, कहीं और नहीं जा सकता। आप इसको किसी और जगह नहीं लेके जा सकते। आप सोचो कि मैं IO से निकाल के कॉस्ट सेंटर पे डाल दूं, अलाउड नहीं है ना। इस केस में IO में जो कॉस्ट है वो AUC में ही जाएगी। आप अगर कॉस्ट सेंटर पे लेके जाना चाहते हो, आप कॉस्ट को कॉस्ट सेंटर में बुक करना चाहते हो, यहाँ से यहाँ पे डाल दूं मैं, ये सोच रहे हो, तो दिस विल नॉट बी अलाउड। ठीक है ना, सिस्टम ये अलाउ नहीं करेगा, ठीक है? दिस विल नॉट बी अलाउड। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉस्ट आप यहाँ बुक करोगे और AUC जो होगा इट विल बी ऑटो क्रिएटेड। ऑटो क्रिएट का मतलब है ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा ना, यू विल नॉट क्रिएट इट मैनुअली। जैसे इट इस विल केस में क्या क्रिएटेड था कि ऑटोमेटिकली एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट और एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट, जब ओके। आप IO में कॉस्ट बुक किए, जब आप सेटल करने जाओगे, राइट, जब अपना ट्रांजेक्शन मारोगे कि वो 88 और सेटल करोगे, तो AUC विल बी ऑटोमेटिकली क्रिएटेड, ओके। ठीक है ना? AUC अपने आप क्रिएट होगा, उसका सेटलमेंट रूल भी ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा। सेटलमेंट रूल भी आपको मेंटेन नहीं करना है, दैट विल आल्सो बी ऑटोमेटिकली क्रिएटेड। तो ये तो स्टैंडर्ड ही पकड़ लेगा। मान लो अगर मैं सेटलमेंट रूल कुछ और बनाता हूँ तो वो तो स्टैंडर्ड पकड़ लेगा ना इस केस में तो। नहीं नहीं, यहाँ पे दो चीजें हैं, यहाँ से यहाँ जाओगे तो रूल के हिसाब से ही होगा ना, IO से निकलेगा AUC में जाएगा, IO से निकलेगा AUC में जाएगा, यही रूल होगा। तो AUC अपने आप क्रिएट करेगा और IO के अंदर अपने आप रूल जनरेट कर देगा, रिसीवर हो जाएगा AUC 100%।
राइट। तो सेटलमेंट जब करोगे तो AUC विल बी ऑटोमेटिकली क्रिएटेड, रूल विल बी ऑटोमेटिकली मेंटेन्ड इन द IO। इस ऑब्जेक्ट के अंदर रूल अपने आप बन जाएगा। नहीं, रूल अगर मान लीजिए मैं अपना कस्टम डिफाइन करता हूँ, फिर तो ये तो पकड़ेगा नहीं सिस्टम। कस्टम में क्या डिफाइन करोगे बताओ? मतलब ये मेरा एक जनरली क्वेश्चन है नहीं कि ना, तो इसमें उस केवल समय आप स्टैंडर्ड IM ही नहीं यूज पकड़ेगा। करोगे ना, उस समय IM नहीं यूज करोगे ना। IM का फंडा वही है कि जो भी कॉस्ट बुक है वो केवल AUC में ही जा सकता है, वो कहीं और नहीं जा सकता, वो केवल ओके इसी में जाएगा। और रूल भी यही बनेगा, सेंडर इज IO, रिसीवर इज AUC 100%, ओके ऑटो जनरेटेड ना, अपने आप बन जाएगा रूल। इस IO के अंदर अपने आप रूल आ जाएगा, सेटलमेंट रूल। तो पूरा कॉस्ट यहाँ पे आ जाएगा। कॉस्ट जो यहाँ बुक की थी आपने, वो कॉस्ट यहाँ पे आ जाएगी AUC के अंदर, राइट। फिर क्या होगा, ये कहीं और नहीं जा सकता। फिर यहाँ से आप इसको सेटल करोगे फिक्स, आगे का प्रोसेस सेम, आगे कोई फर्क नहीं है, ठीक है, कोई चेंज नहीं है। आप अल्टीमेटली AUC को सेटल करोगे और वो फिक्स एसेट में जाएगा, इट इज ऑल सेम। फर्क सिर्फ यही है कि ऊपर वाले केस में हम AUC मैनुअली भी क्रिएट कर सकते थे। वी कैन चूज द AUC कि हमारा किस में जाना चाहिए। मेरे पास 10 AUC हैं तो मैं चूज करूँ कि पहले AUC में डालूं या 10वें AUC में डालूं, किस में डालूं, राइट। AUC कैन बी मैनुअली क्रिएटेड, रूल कैन बी मैनुअली मेंटेन्ड। IO के अंदर रूल मैनुअली मेंटेन कर सकते हो आप। इट कैन गो टू योर डिफरेंट रिसीवर, जरूरी नहीं कि सारा AUC में ही डालो, आप उसको उठा के कॉस्ट सेंटर में भी डाल सकते हो ना। कॉस्ट को निकाल के सेटलमेंट के टाइम पे रिसीवर कैन बी AUC, रिसीवर कैन बी कॉस्ट सेंटर ऑल्सो। लेकिन इस केस में रिसीवर कैन ओनली बी AUC जब आप IM बोलते हो, सिर्फ यहाँ से यहाँ ही जा सकता है और कहीं नहीं। और आगे का सब प्रोसेस सेम है। अब जब ये ऑटोमेटिक क्रिएट करेगा तो अपने आप हवा में तो करेगा नहीं, कुछ तो कन्फिग चाहिए उसको, राइट। क्रिएट क्या करना है, उसका नाम क्या होगा, उसका एसेट क्लास क्या होगा, क्योंकि AUC बनेगा तो वो एसेट क्लास होना चाहिए। तो ये क्रिएट कहाँ से करेगा, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस या फिर मॉडल कॉस्ट, मॉडल एसेट, मॉडल या रेफरेंस बोलो, मॉडल ही बोलते हैं आई थिंक, मॉडल। आएंगे इस पे कि मॉडल ऑर्डर क्या होता है। हम लोग एक मॉडल ऑर्डर यूज करते हैं और उसी हिसाब से सिस्टम काम करता है। तो हम वहाँ पे दे देते हैं मॉडल ऑर्डर के अंदर कि कौन से क्लास को यूज करना है, जब AUC बनेगा तो कौन से एसेट क्लास के अंदर बनेगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं हम लोग, कॉन्फ़िग का पार्ट है वो, सो दैट AUC इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड। जब इस प्रोसेस पे आएंगे तो अपन देखेंगे कि मॉडल ऑर्डर कैसे काम करता है, वहाँ पे हम एसेट क्लास कहाँ मेंटेन कर रहे हैं, राइट। और ठीक वैसे ही WBS का भी है, सेम फंडा, SSIM। यहाँ पे भी आप कॉस्ट बुक करते चले गए हो, अल्टीमेटली सेटल करोगे तो AUC पे ही जाएगा, कहीं और नहीं जा सकता, राइट। कॉस्ट बुक करते चले गए हो, सॉरी नॉट हियर, यहाँ पे ना। और फिर आगे का फंडा सेम है। तो ये AUC में ही जाएगा, कहीं और सेटल नहीं कर सकते। आप इसको सेटल करना चाहोगे कहीं और पे, सिस्टम अलाउ नहीं करेगा। और इस केस में भी सेटलमेंट रूल WBS का अपने आप क्रिएट हो जाएगा, रिसीवर AUC 100%, राइट। किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट पे नहीं जाने वाला ये कॉस्ट, ये नॉट अलाउड, ठीक है ना। सर, तो यस, इसमें भी WBS में मॉडल WBS करके कुछ रहेगा ना, हाँ हाँ, रेफरेंस? इसमें भी रहेगा। इसमें मॉडल WBS नहीं रहता, यहाँ पे देयर इज समथिंग कॉल्ड इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल। ओके। यहाँ पे एक चीज होता है इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल, अल्टीमेटली वही चीज है, हम वहाँ पे देते हैं कि कौन सा एसेट क्लास यूज होगा, राइट। क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं देना ही पड़ेगा हमें कि जब एसेट बनेगा तो कौन से क्लास के अंदर बनेगा। तो दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल। वहाँ पे मॉडल ऑर्डर होता है या इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल होता है, बट मोर और लेस सब सेम ही है, दोनों जगह हम सेम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन देते हैं। सेटलमेंट में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, सेटलमेंट प्रोफाइल, सेटलमेंट, कुछ टर्मिनोलॉजी है कि आपके सामने, सेटलमेंट प्रोफाइल, सोर्स स्ट्रक्चर, सेटलमेंट कॉस्ट एलिमेंट, ये सब आएगा आपके आगे जब आओगे तो, सेटलमेंट की बात करेंगे तो धीमे धीमे आएगा सब आगे। अभी मैंने सिर्फ आपको पिक्चर दिया है कि हमारे सामने क्या आने वाला है, राइट।
कंट्रोलिंग मोटा मोटा क्या होता है। तो यहाँ पे कंट्रोलिंग कैसे हो रही है, बेसिकली आईओ हो या डब्ल्यूबीएस हो, बजट काम कर रहा है, राइट। आपने बजट लगा रखा है, यहाँ पे भी आपने बजट लगा रखा है, और फिर उसको सेटल करके यहाँ लेके चले जा रहे हो कॉस्ट को। इस केस में वो असेट पे जा रहा है सेटल होके, या फिर एक्सपेंस आउट हो जा रहा है, राइट। आईओ में स्टेटस आएगा तो वो सब देखेंगे धीमे धीमे क्या है। तो इनिशियली हम लोग नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स से, कंट्रोलिंग से, कि कंट्रोलिंग का सेटअप कैसे होता है, विच इज़ कंट्रोलिंग एरिया, राइट। कंट्रोलिंग एरिया क्या है, उसमें सेटिंग क्या है, कंट्रोलिंग एरिया करेंसीज क्या होती हैं। जैसे एफआई में 3 करेंसी होती है, राइट। लोकल करेंसी 1 2 3, कंपनी कोड करेंसी, ग्रुप करेंसी एंड हार्ड करेंसी ना। कंट्रोलिंग में वैसे ही ऑब्जेक्ट करेंसी होती है, देन यू हैव कंट्रोलिंग एरिया करेंसी, राइट। तो उसको ऑब्जेक्ट करेंसी बोलते हैं और कंट्रोलिंग एरिया करेंसी बोलते हैं। फिर बात करेंगे वर्जन्स की नेक्स्ट टाइम, कि कंट्रोलिंग एरिया वर्जन्स क्या होते हैं, राइट। वर्जन क्यों क्रिएट करते हैं, व्हाट इज द पर्पस, और कैसे करते हैं उसको यूज। तो बेसिक सेटिंग ऑफ कंट्रोलिंग करेंगे नेक्स्ट टाइम अपन, और फिर आ जाएंगे कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग पे। तो वहाँ पे हम लोग हायरार्की क्रिएट किया जाएगा छोटा सा, एंड वी विल टेक थिंग्स फॉरवर्ड कि प्लानिंग कैसे होती है और एक्चुअल कॉस्ट बुकिंग रिपोर्टिंग, राइट, हायरार्की कैसे काम कर रहा है। और फिर आगे बढ़ेंगे तो वो सब चीज़ें आएंगी, कॉस्ट सेंटर साइकिल्स, राइट, एलोकेशन साइकिल, जिसमें असेसमेंट आता है, डिस्ट्रीब्यूशन आता है, राइट। तो असेसमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे काम करता है, उनका क्या यूज़ है। चलो आज के लिए यहीं पे रोकते हैं, ठीक है ना। ओके। चलो ओके, बाय।